فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ اعوذ باللہ من میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ مدنی مذاکرے میں میرے گمان کے حساب سے جو ہے نا وہ ہمیں اتنا مواد ملتا ہے جو ہم کتابوں میں اور جو ہم تجربوں سے امیر اہل سنت کے جو انہوں نے حاصل کیا نا، ہمیں وہ مدنی پھول ملتے ہیں کہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمیں یہ اچھا اس میں بھی یہ حکمت ہے، ایسا کریں گے تو یہ کام ہوگا۔ یہ امیر اہل سنت نے ہمیں سکھایا الحمدللہ، اس میں یہ بہت کچھ مواد ملتا ہے۔ اللہ کا کرم جس پر ہوتا ہے نا اور مرشد کی نگاہ ہوتی ہے تو یقیناً وہی ایسی جگہوں پر آ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس پاکیزہ مقدس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ حضرت عثمان غنی کے حوالے سے بتایا گیا کہ ان کے سال ثواب کے لیے کچھ خرچ کیا جائے، والدین کی خدمت کرنی چاہیے، اس کے حوالے سے بھی والدین کی عزت کرنی چاہیے۔ جو آتا ہے یہاں پہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، جو آتا ہے تو وہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ لے کے ہی جاتا ہے، خالی نہیں جاتا۔ امیر علیہ سنت جو ہے بات بولتے، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، نیکی کمانے کا موقع ملتا ہے۔ حضرت صاحب نے فرمایا تھا کہ چینی وغیرہ اس سے پرہیز کریں، گڑ وغیرہ کھائیں، اور یہ ہے کہ دینی ماحول بنائیں، اپنے گھر کا بھی اپنا بھی، ہر ایک سے خلوص سے پیش آئیں۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کی ماشاءاللہ ایک الگ ہی روحانیت ہے، اور جس طرح شرکت کرتے ہیں اور آتے ہی رہتے ہیں، لیکن آج کیفیت تھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اس کے سلسلے میں ایک اچھا مدنی مذاکرہ ہوا۔ جس طرح ہر ہفتے آتے ہیں، مزید ایک ذہن ملا کہ ہم بھی انشاءاللہ مدنی مذاکرے سے جا کر، اگر آج نیاز نہیں کری تھی تو انشاءاللہ ارادہ ہے کہ کل جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں وہ نیاز کریں گے، اور اپنے اڑوس پڑوس میں دیگر لوگوں کو بھی نیاز جو ہے پہنچاؤں گا۔ اور جو وہ ایک امیر سنت نے ترغیب دلائی کہ پرچی لگا کر دے، تو یہ نیت ہے کہ انشاءاللہ ویسے تو کرتے ہیں نیاز، لیکن اس بار یہ ذہن بنائیں کہ وہ پرچی لگا کر جس پر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نیاز لکھی ہو، یہ اس طرح نیاز پہنچاؤں گا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے پاکستان میں، کراچی میں، جی آنا چاہیے۔ والدین کے حوالے سے آج کل کا جو ماحول ہے وہ ایسی ماحول آپ کو پتہ ہی ہے۔ یہ حضرت صاحب نے جو بتایا وہ بہت زبردست باتیں بتائیں کہ والدین کا احترام، والدین کو اف تک نہیں کرنے چاہیے، والدین کے بارے میں بہت اچھی باتیں بتائیں۔ میں کہتا ہوں سب کو آنا چاہیے، پورے اہل کراچی کو آنا چاہیے۔ خوش نصیب ہے کہ ہمیں حضرت صاحب اتنی اچھی اور اتنے انمول ہمارے کو نگینے بتاتے ہیں کہ ہمارا دل جو ہے نا ان میں خزانہ مفت میں، کوئی پائی پیسہ نہیں ہے۔ میں جاب کرتا ہوں فائنانس ڈپارٹ میں، کراچی میں ہی، پاکستان کرنسی ایکسچینج میں۔ جب دل پریشان ہوتا ہے تو مرشد کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ سمجھیں یہ خزانے بانٹے جا رہے ہیں جنت کے، اور یہی ہے بس، یہاں ہم آتے رہیں گے تو ہماری کامیابی ہے، ورنہ بھٹک جائیں گے۔ مدنی مذاکرہ تو اور فیضان مدینہ یہ ہمارے لیے سمجھ لیں ایک اتنا بڑا خزانہ ہے نا، اگر ہم نے اس وقت حاصل کر لیا انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد میں سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہوگا۔ پھر جب داخل مسجد ہوں تو دوبارہ نیت کر لیں۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا
दम किया हुआ पानी पीना, न्याज खाना वगैरह उसी सूरत में जायज होते हैं जबकि पहले से जबकि एहतिकाफ की नियत की हो। नहीं की थी और इफ्तार का टाइम आ गया, मस्जिद में इफ्तार नहीं कर सकेंगे, अभी नियत कर लें और इफ्तार कर लें। ताहम मुनासिब ये है कि ऐसे मौके पर इफ्तार जब नियत करें तो फौरन नियत के बाद न खाएं, बल्कि नियत सवाब के लिए करनी चाहिए। सवाब के लिए नियत करके अब चंद बार जिक्र दुरूद कर लें, चाहे तो 12 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, अब बेशक इफ्तार वगैरह करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आज 1446 निजी के जिल हज शरीफ की 25वीं रात है। इस मुनासबत से मकतबतुल मदीना के रिसाले ज़ियादुल से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 25, जैसे ये पसंद हो कि अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होते वक्त अल्लाह पाक उससे राजी हो, उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े। कसरत से माने ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़े। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला, आप सवालत कीजिए और सवाल का जवाब वो भी सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊं, जरूर नहीं भूल करता पाए, जरूर मेरी इस्लाह फरमाएं। भूल होने की सूरत में शुक्रिया के साथ कबूल करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम फरीद है और मौलाना साहब मेरा आपसे एक मौदूबाना सवाल है। इदारों में काम के दौरान हसद और मनफी जो मुकाबला है उसके बारे में आप क्या नसीहत फरमाएंगे? हाँ, ये तो वाकई घर घर की कहानी भी है और कारखानों में, मिलों में, मुख्तलिफ इदारों में ये इल्म की कमी की वजह से अच्छी सोहबत मुयसर ना आने के सबब इस तरह का होता है गालिबन। और सही बात है कि मतलब अच्छी सोहबत जिसको हम कहते हैं ना, बारहा वो सोहबत वाकई अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये जो हसद, बोग्ज, गीबत, चुगली, इस तरह के मामलात जो हैं वो कई मजहबी नज़र आने वाले अफराद में भी पाए जाते हैं। ये है मतलब आजमाइश वाला मामला। तो इसके लिए मुताला और बाअमल आशिकान रसूल की सोहबत, ऐसे बाअमल आशिकान रसूल जिनके पास कुछ न कुछ इल्म दीन भी हो। वरना बाद लोग बाअमल जरूर होते हैं लेकिन मालूमात न होने की वजह से इन गुनाहों में वो भी नजर आते हैं। बाज बड़े इससे लगता है कि बहुत मजहबी, बड़ा नेक आदमी, लेकिन बाज़ औक़ात वो भी इसमें मुब्तला होता है कि उसको मालूमात नहीं होती। तो इसलिए इसकी मालूमात होनी चाहिए, इसका मुताला करें। अगर गीबत की तबाहकारियाँ, ये किताब मकतबतुल मदीना की गौर से पढ़ लेना, पढ़ा तो बहुत सोने होता है, बाज़ औक़ात पढ़े होते हैं लेकिन अमल में थोड़ा आजमाइश हो जाती है, तो पढ़ते हैं लेकिन बस वो जिनको बोलते हैं एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल ली, तो पढ़ा बस पढ़ा, पढ़ना बराए पढ़ना। तो तवज्जो से पढ़े, बार बार पढ़े और सीरियस ले इसको और अमली जामा पहनाने की कोशिश करे कि मुझे ये गुनाह नहीं करना। इसमें हसद है तो गिबत है तो चुगली वगैरह कई गुनाहों का ज़िम्नन तज़किरा है उसमें। तो सीरियस लेता जाए और गौर करता जाए, फिर जहाँ समझ ना पड़े वो मालूमात कर ले, जिस दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से मालूमात कर ले कि इसका मतलब क्या है, इसका क्या कर रहा है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, हाथ पैर मारेंगे। ज़रा माँ के पेट से तो कोई सीख कर आता नहीं, हाथ पैर मारेंगे तो इंशाल्लाह तरकीब बनेगी। वरना ये इदारों में वाकई होता है कि ये क्यों आगे बढ़ गया, तो वो मेरी तो इससे तो ज़्यादा सलाहियत मुझ में थी, इसका क्या कैलेबर है, इसको क्या वो है, तो मैं इससे ज़्यादा जूनियर हूँ तो सीनियर हूँ, ये जूनियर है मैं सीनियर हूँ और इसको बढ़ा दिया आगे। तो ये हसद जो करता नहीं बहुत बुरा बंदा होता है।
یعنی یہ اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہے. یہ مانا یہی بنتا ہے کیونکہ اللہ نے عزت دی اس کو, اللہ نے اس کو منصب دیا اور ہم اس کی صلاحیتوں کی پیمائش کر رہے ہیں. تو اس طرح پھر اس میں غیبت کی بھی صورت بنے گی. ایک تو حسد اس سے ہوا کہ اس کی یہ جو ملا اس کو یہ ضائع ہو جائے, نہ ملے اس کو جو ترقی ملی. حسد یہی ہوتا ہے کہ دوسرے کی نعمت دیکھ کر اس کے ضائع ہونے کی تمنا کرنا, یہ حسد کہلاتا ہے. اور حدیث پاک میں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے اس طرح آگ لکڑی کو. ایک تو حسد پھر جس نے اس کو ترقی دی, جو اس سے بڑا عہدیدار تھا, جو افسر تھا, جو بھی تھا, مینیجر تھا, اس کے بارے میں بدگمانی کہ یہ اس کی چاپلوسی کرتا رہتا ہے, تو یہ اس نے اس کو بڑھا دیا. اب دو مسئلے ہوئے, ایک تو چاپلوسی کرتا ہے, خوشامد کرتا ہے, یہ عام طور پہ جھوٹی خوشامدیں ہوتی ہیں, تو یہ ایک اس پر تہمت کی چاپلوسی کرتا ہے, اور اس پر یہ افسر بے وقوف ہے کہ اس کی چاپلوسی میں آ کر اس کو لیاقت یعنی صلاحیت نہ ہونے کے باوجود وہ بڑا عہدہ دے دیا. تو یوں مطلب بعض اوقات ایک گناہ جو ہے نا کئی گناہوں میں پھنساتا چلا جاتا ہے. اب ان میں بھی گناہوں کی کاؤنٹنگ کرنے میں, گناہوں کی لسٹ بنانے میں اور بھی کوشش کریں گے نا, ہم ڈیپ جائیں گے, معلومات ہوگی تو اور بھی گناہ نکلیں گے. تو اس طرح مطلب یہ کہ گناہ پر گناہ, گناہ پر گناہ بندہ کرتا چلا جاتا ہے. نیک صورت ہوتا ہے, داڑھی بھی ہوتی ہے, بعض اوقات امامہ بھی ہوتا ہے, زلفیں بھی ہوتی ہیں, سنت دوبارہ لباس بھی ہوتا ہے, لیکن ان کو معلومات نہیں ہوتی اور صحیح معنوں میں اس کو صحبت نہیں ملی ہوتی, نہ وہ اجتماع میں باقاعدہ حاضری ہوتی ہے, نہ مدنی مذاکرے, نہ دینی کام, نہ دینی مطالعہ, بس جوش میں آ کے حلیہ بعض وقت بنا دیا. اچھا کیا, برا نہیں کیا, لیکن ایک اس میں چونکہ صلاحیتیں علم دین کے حوالے سے نہیں ہے تو وہ اس طرح کی بھولیں کرتا رہتا ہے. اچھا بعض وقت علم ہوتا ہے, معلومات ہوتی, پھر بھی شامت نفس کی وجہ سے ان برائیوں میں پڑا رہتا ہے. تو اللہ جس کو بچائے وہ بچتا ہے, ورنہ یقین مانے یہ ایسے گناہ ہے کہ جن کا عام طور پہ بندے کو احساس نہیں ہوتا, وہ سمجھتا ہے میں بہت اچھے کام کر رہا ہوں, حالانکہ یہ چیزیں اس کی ہلاکت کے لیے کافی ہے, اس کو جہنم میں جھونکنے کے لیے کافی ہے. تو اس لیے ظاہر بھی اچھا ہو, باطن بھی اچھا ہو, شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے کہ میں باطن اب سدھار لوں پھر ظاہر سدھاروں گا, یہ بھی بربادی ہے. جہاں ظاہر سدھارنا ہو ظاہر بھی سدھارنا ہی ہے, اور باطن کے سدھارنے سے بھی غافل نہیں ہونا. تو یہ سب ایک دو چار منٹ کی باتوں سے تو ظاہر پیدا نہیں ہونی. یہ چیزیں آہستہ آہستہ کوشش کرتے جائیں گے, مطالعہ کرتے جائیں گے, اچھی صحبت اور جو میں نے عرض کیا اجتماعات یہ وہ آہستہ آہستہ قافلوں میں سفر, نیک اعمال کے مطابق عمل, اور خاموشی, قفل مدینہ, نگاہیں نیچی, کسی کے عیبوں کی طرف نظر پڑے تو خود کو دیکھے کہ ایک انگلی اٹھا رہا ہوں, 3 تو میری طرف آ رہی ہے, اپنے کو دیکھ تو کیسا ہے. تو انشاءاللہ بہت کچھ فوائد حاصل ہوں گے. اللہ توفیق دے, توفیق دینے والا رب ہے, ہمیں نیک بنا دے اللہ پاک, ہم نیک نہیں بن سکے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد, اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے, حسد سے بچو, کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. حوالہ سنن ابی داؤد, حدیث نمبر 4903. امام ابن مبرد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عاجزی اختیار کرنا ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کو اپنانے والے سے حسد نہیں کیا جاتا, اور خود پسندی ایسی بری بلا ہے کہ جس سے منصف شخص, انصاف پسند آدمی پر رحم نہیں کیا جاتا. اچھا, جس سے متصف یعنی جو خود پسندی میں مبتلا ہو, یہ بھی ایک اردو ہے, یعنی خود پسندی جو کرتا ہے اس پر رحم نہیں کیا جاتا. اب خود پسندی کیا ہے؟ جو اس کو صلاحیت ملی ہے, جو نعمت ملی ہے, جو دولت ملی ہے, اچھی آواز ہے, نعت پڑھتا ہے تو تڑپا دیتا ہے, اس کا دل کسی اور کام کے لیے تڑپتا ہو, جیب کے لیے تڑپتا ہو, چاہے دوسروں کو تڑپا دیتا ہے اپنی آواز کے لیے, اپنی آواز سے نعمت ملی ہے. بہترین مقرر مبلغ کہ مجمع پر چھا جاتا ہے, باتوں کا مطلب وہ نا
گفتار کا غازی، باتوں میں سب کو کھا جائے ایسا ہوشیار سیاح. تو بہرحال جو بھی اس کو مطلب صلاحیت ملی تو وہ اس کو اپنا کمال سمجھے اور اس بات سے غفلت کرے کہ یہ میرا کمال، کیونکہ میرا اپنا کمال ہے اور میرا کمال کبھی مجھ سے جدا نہیں ہوگا، جائے گا نہیں. یہ میری صلاحیت. اللہ پاک کی طرف توجہ نہ رہے کہ میرا کمال رب ذوالجلال کا دیا ہوا ہے اور وہ جب چاہے گا واپس لے لے گا. بھول جائے کہ ہر کمال را زوال است، ہر کمال کو زوال ہے. جو بلندی ہے اس کے لیے پستی ہے، جو اونچا ہے وہ نیچا بھی ہوگا. تو یہ بھول جائے. تو یہ خود پسندی ہے کہ خود پسندی 70 سال کے اعمال کو برباد کرتی ہے. بہت بری چیز ہے یہ. تو اس پر یہ مطلب کہ جو خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اور جو عاجزی اختیار کرتا ہے زبان کی نہیں، فقیر حقیر وہ تو گناہگار ہوں، بڑا گندا کمینہ ہوں، ذرا اس کے مزاج کے خلاف بات آئی تو ہٹ جاؤ، منہ توڑ دوں گا. یہ عاجزی نہیں ہوتی. دل سے عاجزی ہو، الفاظ سے عاجزی نہیں. الفاظ کی عاجزی تو منافقت میں ڈالتی ہے بندے کو. وہ عاجزی کیے جا رہے ہیں، فقیر حقیر سراپا پر تقصیر ذرہ بے مقدار، میں کچھ بھی نہیں، اور دل میں سب گند بھرے ہوئے ہیں انانیت کے. تو یہ نہیں ہوتا. دل کی عاجزی، یہ عاجزی ہوتی ہے حقیقت میں. پھر بھلے زبان سے بھی اس کا اظہار ہوتا ہو، ریا کے لیے نہیں. بعض وقت زبان سے اظہار ہوتا ہے لیکن ریا کے لیے لوگ بولیں گے یار اتنا ماشاءاللہ مشہور آدمی ہے، اتنا بڑا عہدے دار افسر ہے، اتنا بڑا بہترین نعت خوان، بہترین مقرر، زوردار قاری، وہ کیسی عاجزی کرتا ہے؟ یعنی کہ اس لیے عاجزی کرتا ہے. تو یہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو حب جا اور ریا کا مریض ہے. دل سے عاجزی، زبان و دل ایک ہو. کہ اللہ پاک دلوں کا حال جانتا ہے. تو اللہ سچی عاجزی نصیب کرے. وہ جو حقیقت میں عاجزی کرتا ہے اس سے حسد نہیں کیا جاتا. حسد سے بچنے کی ایک صورت ہے. مزید یہ کہ اپنی غلطی کی معذرت کر لینا، یعنی کہ حسد سے یہ بھی کام بچاتا ہے کہ جب بھول ہو جائے، کوئی توجہ دلائے تو معافی مانگ لے، یا احساس ہو جائے تب بھی معافی مانگ لے. غموں کو دور کرنا پریشانیاں مٹاتا ہے، حسد کو ختم کرتا ہے اور دیگر رکاوٹیں دور کرتا ہے. حوالہ روضۃ العقلاء پیج نمبر 250. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے بھی سوالات موصول ہو رہے ہیں. ایک سوال موصول ہوا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت میں 2 بزرگ کے بتائے ہوئے اوراد پڑھ سکتے ہیں بچوں پر دم وغیرہ کرنے کے لیے؟ دو بزرگوں کے مزار پر وظائف، اوراد و وظائف بتائے ہوئے. کچھ انہوں نے بتا دیا، کچھ انہوں نے بتا دیا، کچھ انہوں نے بتا دیا، پھر ماں باپ ڈھونڈتے تھے یہ گیا کہاں. جی جی. اب بزرگ کی تعریف کیا، ڈیفینیشن کیا، بزرگ کی پہچان کیا. یہ واقعی ہے کہ بابا جی بھی بعض اوقات بتا دیتے ہیں کہ رات کو سب سو جائے نا، اندھیرے میں خالی کمرے میں بیٹھ کر یہ پڑھ تو موکل تیرے پاس آ جائے گا. اب موکل آئے یا نہ آئے، ڈاکٹر نے زنجیروں میں باندھ کر ڈال دیا ہے کمرے میں، اجالے والے کمرے میں، چوٹ کھا گیا. تو یوں نہ کرے. یہ مختصر اوراد جو کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں نا اپنی، جیسے کہ اپنے پیر صاحب کا جو شجرہ ہے اس کے اوراد پڑھ لیے، یہ مختصر، عام طور پر مختصر ہوتے ہیں. اچھا، تو باقی زیادہ اوراد میں نہ پڑھے، جو 10,000 15,000 قبرستان جا کر پڑھنا. تو یہ اوراد جو ہوتا ہے نا، یہ جو ماہر ہوتا ہے نا اس کی نگرانی میں پڑھے جا سکتے ہیں. لیکن اب ان میں ہم لوگ تو خیر نہ پڑھتے ہیں نہ ان میں ڈالتے ہیں لوگوں کو. تو سیدھی ہم تو سنت عام کریں، دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے. درود شریف جو ہے نا بس یہ پڑھے جائیں. آپ
ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. تو درود شریف جتنا پڑھ سکتے ہیں آگے بڑھتے چلے جائیں، لیکن ان میں بھی مخارج غلط ہوں یا اوراد و وظائف میں جو پڑھتے ہیں مخارج غلط ہوتے ہیں نا، حروف صحیح ادا نہیں ہوتے صحیح مخرج سے، تو اس میں بعضوں کا خطرہ ہوتا ہے نقصان ہونے کا. تو صحیح سیکھنا چاہیے، قرآن کریم بھی درست سیکھنا چاہیے، ضروری ہے. تو اگر دونوں بزرگ مسلمہ بزرگ ہیں، اچھے بزرگ ہیں، ایک نے فرمایا کہ دلائل الخیرات شریف آپ پڑھا کریں اور آپ کے بھی تلفظ درست ہیں، دوسرے نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھا کریں. اچھی بات ہے، آیت الکرسی تو حدیثوں سے ثابت ہے. ایک مثال ذہن میں آئی تو میں نے عرض کیا کہ جو اس طرح کی بات ہے تو وہ، لیکن اب یہ پڑھنے والے کو اتنا سمجھ نہیں پڑے گی نا، تو وہ تو بعضوں کی عادت ہوتی ہے. آپ نے اگر کچھ کمایا ہوا اپنا وظیفہ دے دو. ارے بھائی کمانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، تعلیم ہوتی ہے، سند ہوتی ہے. اب ایک دم سے ساری کمائی تیرے قدموں میں کیسے ڈال دیں؟ تو سنبھال نہیں سکے گا. ایک بزرگ کا واقعہ یاد آیا، اس کو بھی کچھ چاہیے تھا کمال. تو بزرگ نے ان سے فرمایا کہ ایسا کرو کہ اس کو ایک بار ایک ٹوکری دی ڈھکی ہوئی اور کہا کہ یہ ادھر مطلب اتنے میل دور جو فلاں بزرگ ہیں ان کو دے آؤ. دیکھو یہ ٹوکری کو ادھر ادھر رکھنا ہے اور کھول کے دیکھنا نہیں. تو وہ تو چلا، وہ ٹوکری جو تھی وہ راستے میں تھوڑا اندر سے ہل جل اس کو محسوس ہوئی، مگر یہ چلتا رہا. بڑا ضبط کیا، لیکن ہل جل ہوتی تھی، کبھی بڑھتی تھی، کبھی اندر سے پھدکنے کی آواز آتی تھی. اب اس کو بڑا تجسس ہے کہ یار دیکھو تو صحیح. وہ بزرگ تو وہ ادھر رہ گئے، کہاں دیکھیں گے یہ. اس نے ٹوکری کھولی، جمپ مار کے چوہا بھاگ گیا، اندر چوہا تھا. خیر وہ واپس آ گیا، بزرگ سے بولا کہ آپ نے بھی حضرت کیا میرے ساتھ مذاق کیا، چوہا دے دیا میرے اس بزرگ کو، کیسے تو جا کے. تو راستے میں کھولا تو بھاگ گیا. تو بولا میں نے تیرا امتحان لیا تھا، تو میری ایک ٹوکری نہیں سنبھال سکا، تو میں تم کو کوئی کمال دوں گی تو کہاں سے سنبھال سکو گے. کمال لے کے دمال کرو گے، لوگوں کو مطلب پریشان کر دو گے. تو بہرحال یہ کہ ایک سمجھانے کے لیے ایک من گھڑت ہوگا واقعہ، لیکن یہ کہ سمجھانے کے لیے ایک نصیحت ہے کہ اتنی صلاحیت ہو کہ اس کا بوجھ بھی اٹھا سکے، سنبھال بھی سکے، ایبیلٹی ہو اس میں. صلو علی الحبیب. سیدی SMS کے ذریعے ایک سوال ہے، کیا رات کے آخری حصے میں دیکھا گیا خواب سچا ہوتا ہے؟ خوابوں کی تعبیریں کا جو سلسلہ ہے نا، یہ سوال وہاں کا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک اور سوال ہے حضور. اچھا یہ ویسے وضاحت کر دوں کہ سچا خواب صرف نبی کا ہوتا ہے، 100% سچا، اور مبنی پر وحی ہوتا ہے نبی کا خواب، وہ بھی وحی ہوتی ہے اس میں. عام اس کے علاوہ غیر نبی کا خواب سچا سے مراد یہ ہوتا ہے کہ غالب مطلب اس میں بہتری ہوتی ہے یا واقعی یعنی کہ بہت کچھ اس میں درستی ہوتی ہے، لیکن 100% 112% جو ہے نا بالکل پرفیکٹ، وہ حجت دلیل یہ نبی کا خواب. غیر نبی کا خواب دلیل نہیں ہوتا کہ خواب دیکھا ہے تو بس اب سب کچھ ہو گیا. خواب میں سونے کی اینٹ ملی تو خلاص سونے کی اینٹ ملے گی، اب سونے کی اینٹ پکڑنے گیا تو مٹی کی اینٹ بھی ہاتھ سے نکل گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. SMS کے ذریعے ایک اور سوال ہے، اگر کوئی شخص رات کے وقت گھر میں نفل یا فرض نماز ادا کر رہا ہو اور اسی دوران بجلی چلی جائے جس سے مکمل اندھیرا ہو جائے، تو کیا ایسے اندھیرے میں نماز مکمل کرنا بہتر ہے یا نماز روک کر لائٹ وغیرہ جلا کر نماز دوبارہ شروع کرنا؟ اس میں ایسا کہ اگر گھبراہٹ ہو جاتی ہے، ایک دم اس کو تشویش ہے، خوف طاری ہو جاتا تو بالکل پھر توڑ دے، ورنہ اگر کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو تو بھلے پوری کر لے، ہے نا.
यही हो। सच्चा वही के मतलब जो मैंने वजाहत की, हाँ वो। लेकिन तिरमिजी शरीफ की हदीस बयान फरमा रहे हैं कि तिरमिजी शरीफ की हदीस में है कि रात के आखिरी हिस्से में देखा हुआ ख्वाब सच्चा होता है। लेकिन बहरहाल उसकी भी शरह देखनी होगी कि शरह में क्या फरमाया जाता है, क्योंकि ये फाइनल मतलब ये है कि नबी का ख्वाब वही पर मबनी होता है और ये मतलब 100% दुरुस्त होता है और वो वही होता है और दलील होता है। इसके अलावा गैर नबी का ख्वाब दलील नहीं होता। सच्चा तो हो सकता है कि उसकी सच्चाई भी जाहिर हो, हदीस में फरमाया वो भी हक है, लेकिन अब ख्वाब देखने वाले पर भी तो होता होगा ना कि वो उसकी क्या मतलब है कि हैसियत है देखने वाला। हाँ, हज़रत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स हाजिर हुआ। आला हज़रत फरमाते हैं, आला हज़रत के वालिद साहब ने लिखा, गलिबन आला हज़रत ने खुद लिखा, तो कि एक शख्स बारगाह आला हज़रत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ तो और अर्ज की कि हुजूर मुझे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और मुझे शराब पीने का हुक्म दिया। तो इमाम जाफर सादिक ने फरमाया तेरी गलतफहमी हुई है, सरकार ने तुझे शराब पीने से मना फरमाया, तो समझा उल्टा है। इसलिए कि शराब पीना तो कुरान और हदीस से हराम है, तो साबित है। अब इसके बरक्स ख्वाब आया तो वो झूठा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, हालांकि वो सरकार की तरफ मंसूब कर रहा है कि सरकार ने फरमाया। सरकार जो फरमाया वो हक होता है, समझने वाला वो दुरुस्त समझा कि नहीं समझा, बात यहां है ना। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में कुछ यूं लिखा था कि दस्तरखान पर लोग कहते हैं मौलवी बहुत खाते हैं, और जब उनसे कहो अपने बच्चे को मदरसे में डाल दो तो कहते हैं अगर बच्चा मौलवी बन गया तो खाएगा कहां से। अमीर अहले सुन्नत, इस अजीब फलसफे के बारे में आप क्या कहते हैं? मैं जब से मेरी दाढ़ी आई ना मैंने रख ली है, और इन्हें कहने को कि मैं वो मौलवी हूँ कि उस दौर में मौलवी बहुत कम होते थे, अपने मुआशरे में दाढ़ी वाले कम होते थे, तो मैं हवा खा के बढ़ गया हूँ ना, तो बड़ा हो गया हूँ। ये मौलवी पैदाइशी, ये भी समझे पैदाइशी मौलवी है एक तरह से। बच्चे थे जब से हिफ्ज किया और अब दरस निज़ामी किया और दारुल इफ्ता अहले सुन्नत ज्वाइन किया, तदरीब की, फतवे लिखे, आखिर ये नायब मुफ्ती तक पहुंच गए। तो अब मुफ्ती की तारीफ पर आ जाता है नायब मुफ्ती। तो यूं मतलब ये कि ये कहाँ से खाते, इनको पूछो मिलता है कि नहीं। तो ये मतलब खिलाने वाला कौन है? ऊपर ऊपर है, नहीं कह सकते तो अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह समत से, डायरेक्शन से पाक है। खिलाने वाली रब की जात है, खिलाने वाला अल्लाह है और वही खिलाता है। तो ये मतलब लोगों की बहरहाल ये कि होता है कि बच्चे को अगर डाल दिया मदरसे में तो खाएगा कहाँ से, अल्लाह खिलाता है। एक बुजुर्ग का वाकया है कि एक जगह नमाज पढ़ी तो इमाम साहब ने नमाज के बाद उनसे पूछा कि अब खाते कहाँ से। उन्होंने फरमाया पहले नमाज दोहरा लूं फिर बताता हूँ। तुमको ये भी पता नहीं ये कौन खिलाता है और कहाँ से बंदा खाता है, तो रब खिलाता है। तो ये क्या है, अल्लाह खिलाता है। तो मदरसे में बिल्कुल डालने से कोई भूखा नहीं मरता। अल्हम्दुलिल्लाह देखा जाए तो लाखों उलमा और लाखों हुफ्फाज भी तो दुनिया में पाए जाते हैं ना। आखिर वो खाते तो होंगे ना, खाते होंगे या खाते हैं ना, ये भी तो जिंदा है, बगैर खाए पिए तो जिंदा रह नहीं सकता ना आदमी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बेरोजगार आपको दुनिया में गैर मौलाना ज्यादा मिलेंगे। उलमा बेरोजगार शायद ही कोई मिले। बेरोजगारी की वजह से खुदकुशियां करने का भी एक शरा है, इतनी खुदकुशियां होती बेरोजगारी की वजह से। एक आलिम का पता दे दो, नाम दे दो कि उसने खुदकुशी की हो, तंगी मुआश से तंग आकर, मालिक कमजोरी की वजह से खुदकुशी कर दी हो कि पैसा नहीं है, खाने को नहीं है। आप ये तो मेरा बरसों पुराना चैलेंज है।
मैं तो मुतलकन कहता हूं कि कोई एक आलिम दीन का मुझे नाम बताओ जिसने कभी खुदकुशी की हो। अब खुदकुशी करने वाले दुनियादार लोग मिलेंगे आपको, जिनको ये समझते हैं अच्छा मौलवी हो तो खाएगा कहां से। तो मौलवी ऐसा खाता है कि उसकी जान बची रहती है। वो दुनियादार पता नहीं कैसा खाता है कि वो छलांग लगा लेता है, कभी समुद्र में, कभी बिजली की नंगी तार पकड़ लेता है, कभी फंदा डाल के पंखे से लटक जाते। इसको हो क्या गया इसको। ये मैं जो करते हैं इस तरह, मैं उनसे मतलब मेरी हमदर्दी है। जो मुसलमान है उसकी अल्लाह मगफरत करे, जो खुदकुशी करे उसकी नमाज जनाजा जायज़ है, इसाले सवाब भी जायज़ है मुसलमान की। मैं वैसे चोट करने के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो कर रहे हैं तो इनमें एक मौलाना बताओ ना यार, जो आलिम दीन हो, गाड़ी वाला हो या नहीं, आलिम दीन हो, ये बताओ कि जिसने वो खुदकुशी की हो। मैं बरसों से बोलता आ रहा हूँ कि तुम लोग मौलानाओं को उल्टा सीधा बोलते हो, और ये मरने वाले तो मुंडाना होते हैं खुदकुशी करके, मुंडाना मैं इसको बोलता हूँ। ये आमतौर पर शेवडी होते हैं या इतनी सी दाढ़ी वाले, न गैर आलिम होते हैं, आलिम दीन का खुदकुशी करते हैं, समझदार होते हैं आलिम दीन। ये हराम मौत नहीं मरना अपने को, जहन्नम में जाने वाला काम नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह जो खुदकुशियां करते हैं अल्लाह इनको भी हिदायत, इन खुदकुशियों का सोच रहे हैं। अब जो कर गए, जो मुसलमान थे अल्लाह उनको मगफिरत करे, माफ कर दे, और जो करने का सोच रहे हैं अल्लाह करे वो बास आ जाए। ये इससे जान छूटती नहीं है, खुदकुशी से जान फंसती है, ये ज़हन में रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हो गया ना। अल्लाह तफसीर मदारिक में कौन सी तर्जमा है कंजुल ईमान, सूरह अनकबूत आयत नंबर 69, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। तर्जमा है कंजुल ईमान, और जिन्होंने हमारी राह में कोशिश की जरूर हम उन्हें अपने रास्ते दिखा देंगे, और बेशक अल्लाह नेकों के साथ है। तफसीर मदारिक में आयत के तहत है अल्लाह पाक नेक लोगों के साथ है, अल्लाह पाक नेक लोगों के साथ है कि दुनिया में इनकी मदद और नुसरत फरमाता है, और आखिरत में इन्हें मगफिरत और सवाब से सरफराज फरमाएगा। तो ये मतलब मौलवी, अगर कोई मौलवी बनकर इन्हें कोई नेक बनता, आलिम दीन हासिल करता है तो उसके लिए दर्जे बुलंद है उसके, और अल्लाह पाक इनको मतलब दुनिया में भी मदद फरमाता है और आखिरत में भी मगफिरत से उनको नवाजेगा। ये तो कुरान की आयत आपने सुनी है ना, जिसका ये शरह भी बयान की गई। तो अल्लाह की रहमत पर नजर रखें और जरूर अपने बच्चों को मौलवी बनाएं। लफ्ज मौलवी अब हमारे यहाँ हकीर जाना जाता है माज़अल्लाह, लेकिन मतलब पहले ये मौलवी ही लफ्ज इस्तेमाल होता। मौलवी फाजिल, अभी ये सनद जो है दरस निज़ामी की मौलवी फाजिल कहलाती है, तो इसमें कोई हरज नहीं है मौलवी कहने में। लेकिन मौलाना कहते हैं, चलो आपको अच्छा ये लगता हो तो मौलाना बनाए, अपने बच्चों को हजरत बनाए, आलिम दीन बनाए। कम से कम खानदान में, घर में एक बच्चा आलिम हो, एक बच्ची आलिमा हो, मदीना मदीना हो जाए इंशाअल्लाह। सारे खानदान को अद्धर उठा के जन्नत में रख दें, रब चाहे तो। हाँ, रब चाहे तो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निगरान शूरा फैसलाबाद से मदनी मुज़ाकरे में शामिल हैं, वहाँ तशरीफ़ फरमा है। आपकी तरफ से एक मैसेज मौसूल हुआ है कि मदरसे में पढ़ने वाले को वैसे ही खाने का टेंशन नहीं होता, अल्लाह पाक इनका बेहतरीन इंतज़ाम फरमा देता है। माशाअल्लाह। तो ये फिर बोलते हैं कि मस्जिद की रोटियां तोड़ता है, ये फिर इसका इनका दूसरा मुहावरा होता है बेचारों का, तुम सूद खाओ, रिश्वतें खाओ, झूठ बोलकर, दगा देकर, धोखा देकर कमाओ, और मौलाना मस्जिद में बैठकर अगर रोटी खाता और इल्म दीन हासिल करता है, तो ये रोटी जो मस्जिद में मिल रही है ये तो हलाल तो है ना यार। सूद नहीं है, रिश्वत नहीं है, किसी की छीनी भी नहीं है, किसी को धोखा देकर मतलब कमाई भी नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आपकी बारगाह में मेरा ये सवाल अर्ज है, बाज़ लोग नशा करते हैं लेकिन वो नशा छोड़ना चाहते हैं,
لیکن وہ جو اس کے دوران چھوڑنے کے دوران جو تکلیفیں اور آزمائشیں آتی ہیں وہ برداشت کرنے کا اس کا ذہن نہیں ہوتا ہے، تو وہ شخص کس طرح اپنا ذہن بنائیں کہ وہ نشہ چھوڑنے کے دوران جو تکلیفیں اور جو آزمائشیں آتی ہیں وہ اس کو پار کر لیں، اور اس کے گھر والے اس کا کس طرح ذہن بنائیں کہ وہ شخص نشہ چھوڑ لیں؟ جواب ارشاد فرمائیں جزاک اللہ خیرہ۔ نشہ کرنا یہ حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو نشے سے جان چھڑانے کے لیے اللہ پاک کے اس ملنے والے عذاب پر نظر رکھے کہ میں اگر نشہ کروں گا تو ایسا نہ ہو کہ رب ناراض ہو جائے اور مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے، جہنم کی آگ برداشت نہیں ہوگی، سانپ بچھو کاٹیں گے تو میں سہ نہیں سکوں گا۔ اس کے مقابلے میں یہ جو علاج ہے دنیا میں نشہ چھوڑنے کا، توبہ تو کرنی ہی پڑے گی، توبہ بھی کرے اللہ سے ڈر کر، پھر علاج بھی کر لے جائز طریقے پر، تو تکلیف اس کی برداشت کرے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کی بندے کو عادت ہو جائے نا تو چھوڑنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ سگریٹ کی عادت ہو جاتی ہے، لاکھ سمجھاؤ نہیں جاتی۔ پان گٹکے کی عادت ہو جاتی ہے، لاکھ سمجھاؤ، ان کے سامنے منہ میں کینسر یہ دیکھتے ہیں لیکن نہیں ڈرتے، جاتی نہیں عادت۔ اور ہمارے ہاں تو سگریٹ کی ڈبیا پر لکھا ہوتا ہے نا کینسر، اور وہ کوئی چہرہ بھی ڈراؤنا بنا ہوتا ہے کینسر والے کا، ہونٹ بنے ہوتے ہیں، تو پھر بھی نہیں چھوڑتے سگریٹ، عادت۔ تو جس چیز کی عادت پڑ جائے نا وہ آسانی سے چھوٹتی نہیں ہے، سیریس لینا پڑتا ہے، سیریس لے کہ یہ چھوڑنا ہے مجھے، اینی ہاؤ چھوڑنا ہے، تو اللہ پاک کی مدد طلب کرے، اللہ چاہے تو چھوٹ جائے گی۔ جب شراب کا حکم نازل ہوا کہ یہ اب مطلقاً حرام ہے شراب، تو مدینہ شریف کی گلیوں میں جب منادی اعلان کرنے نکلا، سرکار نے ایک صحابی کو بھیجا وہ اعلان کرے، تو انہوں نے اعلان کیا جب مدینہ گلیوں میں کہ وہی نازل ہوئی ہے کہ شراب حرام ہو گئی ہے۔ تو پہلے شراب جائز تھی، تو صحابہ کرام نے کہتے ہیں نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، نہ حکمت نہ مصلحت، قرآن میں آ گیا، سرکار نے اعلان کرنے کے لیے بندہ بھیجا ہے، صحابی بھیجا ہے، بس انہوں نے شراب کے مٹکے تو جو بھی تھے ان کے پاس وہ سب انڈیلنے شروع کیے، یہاں تک کہتے ہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب کی ندیاں بہ رہی تھی۔ یہ سیریس لیا انہوں نے کہ اللہ رسول کا حکم، خلاص ہماری کوئی مصلحت کوئی حکمت کہ اس کو بیچ کے پیسہ کرو، یہ کرو وہ کرو، نہیں، بیچنا بھی نہیں ہے، حرام حرام، خلاص۔ حرام کو بیچنا بھی جائز تھوڑی کہ اس کو بیچ کے کس سے پیسے کماویں اس سے۔ تو یہ بہرحال یہ اس جذبے کی کوئی ہم کو تھوڑی سی ایک آدھا ذرہ مل جائے تو یہ شراب چھوڑنے کی تکلیفیں ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ بہت ساری عادتیں ہوتی ہیں جو واقعی یعنی کہ عادت پڑ جائے، چائے کی عادت بھی پڑ جائے نا چھوٹتی نہیں ہے۔ چلو چائے ہے، سگریٹ ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ بعض لوگ نادانی میں سگریٹ کو نشہ بولتے ہیں، نشہ یہ نہیں ہے، سگریٹ نشہ نہیں ہے۔ اب کوئی نشے والی سگریٹ آتی ہو تو وہ مستثنا ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن ایکچولی سگریٹ نشہ نہیں ہے، اس لیے حرام نہیں ہے۔ نشہ اس کو بولتے ہیں، نشے کی ڈیفینیشن یہ کہ جس سے عقل میں فطور، عقل میں وہ تبدیلی آ جائے، عقل بدل جائے، جسے ماں اور بہن کی تمیز نہ کر سکے، تو عقل میں فطور آ جائے، ایسی چیز استعمال کی تو جس سے فطور آ جائے، وہ چیز استعمال کرنا حرام، اور یہ نشہ کہلایا نا، تو نشہ، باقی سگریٹ پینے سے وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی نشے کی، حکے سے بھی نہیں آتی، لیکن وہ بہار شریف میں لکھا ہے اس طرح کہ حکا بعض اوقات اس طرح اس میں کچھ ڈال کے لمبے لمبے کش لیتے ہیں اور پھر بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، ہے نا، اس کا کچھ لکھا ہے کہ وہ نشے کی فتح رضویہ شریف میں بھی ہے، تو فتح رضویہ میں پڑھا ہوگا میں نے، تو یہ کیفیت، یہ شاید نشے کی کیفیت تو منع کیا ہے اس کو۔ ویسے بے ہوش ہو جانا بھی نشے کی تعریف تو وہی جو میں نے عرض کی، نشہ جو عقل میں فطور ڈال دے، عقل کو بدل دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ایک علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نیک شخص کو شیطان دکھائی دیا، تو اس نے کہا میں تجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ شیطان کہنے لگا پوچھو۔
क्या पूछना चाहते हो? नेक आदमी ने पूछा, इंसान को बर्बाद करने में तुम्हारे लिए, इंसान को बर्बाद करने में तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मददगार शय क्या है? शैतान ने कहा, नशा हमारा सबसे कामयाब वार है, क्योंकि जब कोई शख्स नशे में होता है तो वो हमसे बच नहीं सकता। हम जो चाहते हैं उससे करवाते हैं, हम उससे ऐसे खेलते हैं जैसे बच्चे गेंद से खेलते हैं। हवाला उयूनुल हिकायात सफ़ा 400 मुलख्खसन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदाकत अत्तारी कराची से अर्ज़ कर रहा हूँ, मुर्शिद करीम की बारगाह में सवाल अर्ज़ ये था कि जो लोग नशा करते हैं उनसे कुछ काम करवाना कैसा, मसलन गाड़ी वॉश करवाना, घर के कुछ कामकाज करवाना, कचरा वगैरह फेंकवाना। बेज़ाहिर देखने से तो ऐसा लगता है कि जो इनको उजरत दी जाएगी इससे ये नशा ही करेंगे, तो इस सूरत में शरीयत हमारी क्या रहनुमाई फरमाता है? काम पूरा करता है उजरत। इसको हम ये नहीं कहते कि तू शराब पिया कर, खाली शराब नहीं पिएगा, खाना भी खाएगा। अम्मी की भी हो सकता है खिदमत करे, अब्बू को भी, तो बाल बच्चे वाला भी हो। तो अब ये कि कोई नशा तो बेनमाजी को भी नहीं देना चाहिए। जो खाएगा तो उसको ताकत आएगी तो और मतलब पड्डेबाजियां करेगा। तो फिर तो कोई भी गुनाह करता है उसे कोई काम करवाना ही नहीं चाहिए, आप खुद कर लिया करें सारे काम। दोबारा लेके अगर कोई नशा करता है उसको अमरुम बिल मारूफ करें, नेकी की दावत दें उसको। अगर वो कोई ऐसा मजदूरी वगैरह करता है और काम करता है, काम पूरा करता है, उसको उजरत देने में हर्ज नहीं है। हाँ, जब हम इसलिए देंगे ना कि जा आप शराब पी ले तो गुनाहगार होंगे, तो ऐसा कौन करता है? खाली पैसे दे देते हैं। अब वो जो चाहे करे, तो कई ऐसे होते हैं बड़े सफेद पोश होते हैं, जुआ खेलते हैं, तो उनसे सौदा भी नहीं करना चाहिए, कारोबार ही नहीं करना चाहिए, तो ये तो बचेगा कोई नहीं। फिर मेरा आपसे सवाल यह है कि कोई नशे की हालत में कलमा कुफर बोल दे तो क्या वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा? मेरे लिए और मेरे वालिदैन के लिए दुआ मग़फ़िरत फरमा दीजिए। ये असल वो जो भी नशे में होते हैं ना, बाज़ औक़ात पीते कम है, उधम ज्यादा मचाते हैं और बकते भी ज्यादा हैं। तो इसलिए ये मसला जो है ना कि हम बयान नहीं कर सकते, इसको दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से समझ लें जाकर, क्या वो वाकई 100% नशे में है भी या नहीं। शोबाजी का भी एक रुझान है, वो जान के यूं करेंगे, मतलब तो शराब के दौर की तरह पानी पीना ये भी हराम लिखा है हज़रत ने। शराब ऐसी खराब है, तो ये नशे का ढोंग करते हैं, ये भी सारे गुनाहगार तो हो रहे हैं, लेकिन ये कि अब वो इसको फाइनल जब कैसे करेंगे नशे में वाकई है भी या नहीं। ये हदीस पाक में है, फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्किर व मुफ्तिर यानी नशा आवर और अक्ल में फतूर यानी खलल डालने वाली चीज से मना फरमाया है। हवाला अबू दाऊद शरीफ जिल्द 3 सफ़ा 461 हदीस नंबर 3686। ये जो बीच में हदीस से मैं बयान करता हूँ, तो ये जहाँ इसका मौका था वहाँ आगे जाकर इसको सेट करनी होती है। मिरातुल मनाजी जिल्द 5 सफ़ा 329 पर मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो चीज़ भी नशा दे, वो पतली हो जैसे शराब या खुश्क हो जैसे अफ्यून, भंग, चर्स वगैरह, वो हराम है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोशल मीडिया के जरिए याहिया अत्तारी हैं, यूएसए से इनका ताल्लुक है, इनका सवाल मौसूल हुआ है। ये कह रहे हैं अगर किसी को भूलने की, मेमोरी लॉस की बीमारी हो तो उससे नजात का कोई वजीफा इरशाद फरमाते हैं। हाफजा कमजोर हो, जी यही ना? जी जी। कैसे अल्फाज में सवाल किया है, याददाश्त कमजोर हो, उसके लिए कई वजीफे हैं, कई बचने की सूरतें भी इसकी इख्तियार करनी चाहिए कि खट्टा खाने से भी हाफजा कमजोर होता है, खट्टा खाने से बलगम बनता है, बलगम ज्यादा होगा हाफजा कमजोर पड़ेगा।
इसी तरह वो सेब का लिखा है कि सेब वो खट्टा सेब, गालिब खट्टे सेब की है, उससे भी हाफजा कमजोर होता है। छिलका उतारने के ताल्लुक से कुछ लिखा है, सेब का छिलका है लिखा है, हाँ, वो खाने से धनिया, कच्चा धनिया जो खाते हैं इससे भी हाफजा कमजोर होता है। अच्छा, और कब्रों के कतबे पढ़ने से भी हाफजा कमजोर होता है, ये भी लिखा है। अच्छा, और गुनाह करने से भी हाफजा कमजोर होता है। अल्लाह गुनाहों से बचाए। हर नमाज के बाद सर पर हाथ रखकर या कवियू 11 बार पढ़िए, इंशाअल्लाह हाफिजा मजबूत होगा। या कवियू 11 बार पढ़ के सीने पर फूंक मार दे। हमारे सीने पर फूंक मार दे, गरेबान खोल गए, ये जरूरी नहीं, काफी है। अब पेट में दर्द, पेट फाड़ के दम करो हाथों पे, अंदर दम का असर चला ही जाता है, गोली खाते हैं। अब दर्द टांगों में हो रहा है, गोली मुंह से खाइए, अंदर जाके काम तो करती है ना। तो हमारे यहाँ ये करते हैं। अच्छा, एक तो ये करते हैं, सीना खोल के आता है मेरे पास कि दम करो। अब हर एक को समझा नहीं सकता, कभी कभी समझा तो मौका दे, बंद करो ना, दम हो जाएगा। वही पेट पीठ कहीं भी दर्द हो तो चमड़ा होता है, गोश्त होता है, फिर दम हो ही जाता है ना उस पर, दवा भी काम करती है। या वो सर पे हाथ, अब गर्मियों में मुलाकात के वक्त सर पर हाथ ऐसा कोफ्त होती है, और ये जो करते हैं सब सुन भी नहीं रहे होंगे, वो लाइन में लग कर आएंगे सर नंगा। हालांकि पहले हमने देखा कि मैं तो बुजुर्ग नहीं हूँ, जनरल बात करता, बुजुर्गों के सामने सर ढांप के जाते थे। सही बोलता हूँ, मेरा तजुर्बा ये है कि जो मतलब नंगे सर होता भी था तो रुमाल निकालता सर में डाल देता, फिर वो बुजुर्ग से मुलाकात करता। इमाम साहब को मस्जिद के आते देख कर रुमाल डाल लेना या सिगरेट छुपा देना वगैरह। रुमाल का तो याद नहीं आ रहा, सिगरेट छुपाते थे। बहरहाल मज़ारों पे या इस तरह मस्जिदों में लोग वो या बुजुर्गों के पास सर ढांप के जाना ये पहले था। अब तो नमाजों में भी नंगे सर रखने वालों की तादाद बढ़ गई। तो ये कि वो सर नंगा करते हैं, मेरे पास आकर कई बार देखा सर नंगा करते हैं और फिर इस पे हाथ रखवाते हैं। अब यार पसीने की बदबू के भपके आ रहे हैं, आपको पता है आपके सर में, कभी नहाए थे? अब ये कि अब मैं क्या करूं, फिर पसीना लगता है, जो भी लगता है वो बर्दाश्त करना पड़ता है। इतने अकीदतमंद बनाए हैं तो भी कोई माइनस भी तो आएगा ना। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। जो सुन रहे हैं वो तो अल्लाह करेगा तो कभी नहीं करेंगे ना, लेकिन हिस्सों की तादाद ज्यादा है जो सुन नहीं रहे। के पास भी जाए, नंगा सर रखने में कर दे हाथ रखो, बस सर पे हाथ रखवाना तो टोपी या इमामा जो उस पर तो हाथ रह सकता है। अब भेजे को टच करवाना तो खोपड़ी की हड्डी का क्या करेंगे, हाथ तो वहां तक तो पहुंच ही नहीं रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, यरहमुकिल्लाह। यासिर भाई ये आपने क्या बोला? यरहमुकिल्लाह, इसका मतलब क्या है? अल्लाह पर रहम करे। तो ये आप उर्दू में क्या दे दे? मापा चीख का तो उर्दू में दे सकते हैं। माशाअल्लाह, यरहमुकल्लाह। और यानी जब छींक आए ना तो छींकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो सुनने वाले पर वाजिब है, छींकने वाले पर सुन्नत है कि अल्हम्दुलिल्लाह कहे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहे, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल कहे, सुन्नत अदा हो जाएगी। ठीक है ना। तो सुनने वाले पर वाजिब है, नहीं बोलेगा तो अब गुनाहगार होगा ये, यरहमुकल्लाह। और जब ये के मुअन्नस, जैसे ये बच्ची मुअन्नस है फीमेल, तो फीमेल को छींक आए और अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो अब इसको जवाब देंगे यरहमुकिल्लाह। तो इसमें इस बच्चे ने दो मसले सिखाए हमको। एक तो ये कि यरहमुकल्लाह कहना है ना, अल्लाह से रहम की दुआ मांगनी है। दूसरा ये कि वो लड़की हो, औरत हो, अम्मी हो, बाजी हो, कोई भी हो, तो यरहमुकिल्लाह कहना है। अच्छा, दूसरा ये कि
اردو میں. تو اب یہ کہ اس کی دعا تو یہ عربی میں لکھی ہوئی ہے. ہاں عربی میں ہی کہنا ہے, عربی میں ہی کہنا ہے. انگلش کے اتنے سارے یاد ہوتے ہیں, ٹینسز اور پویم اور سینٹینس اور پتہ نہیں کیا کیا. یار ہم کو اللہ یاد نہیں ہوتا آپ سے, یار کیا ہے یار, مجھے نہیں آتا. تو قیامت کے دن کیا کہہ دینا کہ مجھے نہیں آتا تھا, قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تھا, نماز میں نہیں پڑھتا تھا, قرآن نہیں آتا تھا مجھے, کہہ دینا. نہیں کہنا ہے, پڑھ کے جانا ہے, قرآن شریف سیکھ کے جانا ہے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتے ہوئے قرآن سیکھیں, دعائیں یاد کریں, تو اللہ پاک برکت دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. زوم کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی مذاکرے میں ہمارے ساتھ بیرون ملک اور ملک کے بھی جامعۃ المدینہ اور دیگر اسلامی بھائی جمع ہو کر مدنی مذاکرہ سن رہے ہیں. اس میں ہیلی فیکس یو کے, موریشیس, جامعۃ المدینہ نیپال گنج, جامعۃ المدینہ ہتھیاری, جامعۃ المدینہ نیپال گنج, جامعۃ المدینہ سیت پور بنگلہ دیش اور جامعۃ المدینہ فلپائن نیمپولا موزمبک, اور پاکستان سے جامعۃ المدینہ چپور جی, جامعۃ المدینہ بھینس کالونی, جامعۃ المدینہ ڈچ کوٹ, میلسی, حافظ آباد. اس کے علاوہ پنجاب کے کئی شہروں میں اجتماعی طور پر یہ مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. یہ جیسے کہ ابھی بھینس کالونی کا, تو اس میں جیسے ایسے موقع پر اگر یہ کہاں کون سے شہر کی ہے بھینس کالونی, یہ وہ تو زیادہ اچھا ہے. یہ بھینس کالونی کراچی, اور دوسرے شہروں میں بھی ہوگی بھینس کالونی. اچھا, اسی طرح جیسے کوئی اور بھی علاقے کا نام لیا, چوہر جی غالباً, چپور جی لاہور, چبر جی, چپور جی, جو بھی جی ہو, تو وہ دیکھو نہیں پلے پڑا نا, لاہور ہوتا تو پلے پڑ جاتا, اس میں لاہور شاید نہیں بولا تھا. یہ جو یہ بھیجتے ہیں ان کی بات ہے. اب جو پڑھ کے سنانے والا ہے اس کو ضروری نہیں کہ پتا ہو کہ یہ کون سے شہر میں, تو انہیں تھوڑا یوں لکھ کر تھوڑا ایسا دو کہ آپ کے شہر کا نام تو ہو نا, بھائی لاہور میں بھی مدنی مذاکرے ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت توبہ بھی کراتے ہیں, غوث اعظم کا مرید بھی بناتے ہیں, اور غوث اعظم کے مریدوں کے لیے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں والے پیر, پیران پیر, روشن ضمیر, پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف سے بشارت کیا ہے. مجھے ایک کاغذ دیا گیا جو اتنا بڑا ہے جہاں تک نگاہ پہنچے. اس میں میرے اصحاب اور مریدوں کے نام تھے جو قیامت تک ہونے والے تھے. مجھ سے کہا گیا سب کو تمہارے صدقے بخش دیا گیا. سبحان اللہ. ناظرین اور حاضرین کو مشورہ دوں گا کہ امیر اہل سنت کے ذریعے آئیے ہم توبہ کرتے ہیں اور مرید بھی بنتے ہیں غوث اعظم کا. توبہ کرنے والوں کی سعادت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. میں درخواست کروں گا کہ ہمیں توبہ بھی کروائیں اور سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ طاریہ میں داخل بھی فرما لیں. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف جلد 6 پیج نمبر 453 پر فرماتے ہیں, نشہ جو ہمارے محاورے میں سکر و تفتیر دونوں کا عام ہے, اور بنس سے حدیث دونوں حرام. حدیث کی روح سے یہ تفتیر بھی حرام ہے, سکر بھی حرام. اس کے یہی معنی نہیں کہ زمین و آسمان یا مرد و عورت میں امتیاز نہ رہے, یہ تو اس کی انتہا ہے, یعنی اینڈ ہے کہ نشے, یعنی اتنا نشہ چڑھ گیا. سکر مانے نشہ, تفتیر مانے وہی عقل میں فطور ڈالنا ہے نا, یہی نا.
शुक्र माने नशा और तफ्तीर माने वो अक्ल में फतूर आना। तो ये दोनों को आम है नशा। नहीं, ये दोनों इसमें मतलब है कि दोनों चीजें हो सकती है, शुक्र भी हो सकता है, तफ्तीर भी हो सकती है, और दोनों भी हो सकता है। यानी दोनों में से शुक्र हो तो भी नशा, तफ्तीर हो तो भी नशा। बनस से हदीस पाक की रूह से दोनों हराम। उसके यही माना नहीं कि जमीन आसमान या मर्द औरत में इम्तियाज न रहे, इन्हें दोनों में फर्क न रहे। ये तो इसकी इंतहा यानी एंड है। और नशे की इब्तिदा, इंतहा, शुरुआत और एंड दोनों हराम होने में यकसा, सेम। ये वहां एडजस्ट कर लीजिएगा जहां मैंने मतलब ये कि नशे की तारीफ बताई थी, तो वो भी दुरुस्त है जो मैंने कहा, ला वो हिस्सा है। और इसके बाद ये इसमें ये ऐड कर दीजिएगा, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बैत सही थे। अच्छा, इंशाअल्लाह करीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। पापा चल मदीना। मुझे अपनी और साथ दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह करीम। नियाज़ उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह करीम इन सारे बच्चों को बाअमल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए, और इन्हें माँ बाप और ख़ानदान वालों समेत बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा शहर से मीठा मदीना दिखाए। आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। पंजाब के शहर हाफिजाबाद में हमारे हसनैन भाई हैं, इनकी फूल जैसी बेटी ईद के दूसरे दिन मच्छरों का लिक्विड पीने से जिसकी डेथ हो गई, इंतकाल कर गई, और बेचारे बड़े सदमे में हैं। इनके लिए दुआ भी फरमा दे, और वालिदैन को किस तरह एहतियात करनी चाहिए इन चीजों की, इस पर मदनी फूल भी इरशाद फरमा दें। अल्लाहु अकबर। छोटी बच्ची माशाअल्लाह फूल जैसी बच्ची, ये वो पीकर मच्छर का लिक्विड, मच्छर मारने का पानी में मिला हुआ लिक्विड रखा हुआ था, और ये बेचारी पी गई। तो इससे वो कितनी प्यारी बच्ची है। माँ बाप को दिल बड़ा रखना चाहिए, सब्र करना चाहिए कि नाबालिग बच्चा जब फौत होता है तो वो अपने माँ बाप के लिए ज़ख़ीरा आखिरत बनता है।
जन्नत के दरवाजों पर इस्तिकबाल करे, जहन्नम के दरवाजों पर आड़ बने, रुकावट बने, है ना, फजीलत। तो इस तरह मतलब ये कि माँ बाप का इसमें सच पूछो तो नुकसान नहीं है, अगरचे सदमा होता है, काफी सदमा भी होता है बाद औक़ात, लेकिन ये कि यूं देखा जाए तो इसमें माँ बाप का फायदा है। और ये सवाब वालिदैन के लिए, दीगर खानदान वालों के लिए ये बिशारतें नहीं है, लेकिन सब्र जो भी करे उसके लिए सवाब तो उसमें इनको मिलेगा। और अब ये कि ऐसी चीजें जैसा कि मतलब ये कि इसकी फजीलत के ताल्लुक से पहले एक हदीस पाक सुन लें कि अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये शख्स के 3 बच्चे बालिग होने से पहले इंतकाल कर गए, वो उसके लिए जहन्नम की राह में मजबूत तरीन रुकावट होंगे। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज की, मेरे 2 बच्चे आगे पहुंच चुके, इन फौत हो गए। फरमाया और 2 बच्चे भी रुकावट होंगे। हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज की, मैं अपना 1 बच्चा आगे भेज चुका हूं, ने वो फौत हो गया है। फरमाया 1 बच्चा भी जहन्नम की राह में मजबूत तरीन रुकावट बनेगा। हवाला इब्ने माजा जिल्द 2 सफ़ा 272 हदीस नंबर 1606। हजरत सैयदना अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से 5 चीजों का इशारा फरमाया जो मीजान पर सबसे ज्यादा वजन वाली हैं, जिनमें से यह भी इरशाद फरमाया कि किसी मुसलमान शख्स का नेक बच्चा मर जाए और वो उस पर सवाब की उम्मीद रखते हुए सब्र करे। हवाला इब्ने हिबान जिल्द 2 सफ़ा 100 हदीस नंबर 830 मुलख्खसन। तो बहरहाल कि नाबालिग बच्चे की भी फजीलत आपने सुनी, तो इसलिए सब्र हिम्मत से काम लें, अल्लाह पाक आपको सब्र अता फरमाए और इस पर अजर अता फरमाए। हो वावेला मचाने और चीख पुकार करने से सवाब तो मिलेगा नहीं, ना बच्चा वापस लौटेगा, बल्कि अगर वो वावेला जिसकी मुमानत हदीस पाक में वो पाया गया तो फिर गुनाहगार भी होंगे। तो घर में ऐसी चीजें रखी रहती हैं, सुस्ती हो जाती है कि उठाते नहीं है। बाज यानी कि दवाएं, जरासीम कुछ दवाएं रखी होती हैं, कभी तेजाब बच्चे पी लेते हैं। अब चीजें भी इस तरह की बाज बहुत कलर्ड होती हैं, तो बच्चा समझते हैं शरबत है, और अच्छा फिर खुशबूदार भी होती हैं, इस तरह की खौफनाक चीजें, तो आजमाइश। तो इसलिए इन चीजों को बच्चे की पहुंच से दूर रखना चाहिए। दवाओं का भी मसला होता है, दवाएं भी बच्चे बाजू का चढ़ा लेते हैं और बेचारे आजमाइश पा जाते हैं। तो दवाओं में तो लिखा होता है कि बच्चों की पहुंच से दूर रखिए, दवा की बोतलों पर बॉक्स पर लिखा देखा है मैंने, ये अच्छा लिखना चाहिए। तो इस तरह की चीजें जो तेजाब है या ये लिक्विड है इस तरह के, जिनमें बहुत कुछ तो लिखा होता है, एक जुमला थोड़ा हाईलाइट करके ये भी लिखना चाहिए कि इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखिए। तो सवाब की नीयत से करेंगे तो इंशाल्लाह सवाब पाएंगे आप। एक नेकी की दावत है ये कि ये पढ़ने से जिसके पास ये तेजाब की बोतल या इन जरासीम कुछ दवाओं की बोतलें होती हैं, तो वो पढ़ेंगे ना, कभी तो नजर पड़ेगी। इसीलिए मैं हाईलाइट का कि मोटे हरूफ में लिखा जाए तो ज्यादा बेहतर, ताकि इनकी नजर पड़े तो इनकी तवज्जो जी हाँ यार सही है, चलो हाँ भाई इसको वो कबट में रख दो, जब ये हमारा जो मुन्ना है वो चढ़ के निकाल ना सके। तो इस तरह देखने से फायदा होगा। तो ये जरूर जो कंपनियों वाले अगर सुनते हो, दवाएं बनाने वाले, तो इस तरह की कोई भी चीज हो उस पर जरूर लिखे। जिस तरह दवाओं वाले लिखते हैं तो अच्छी बात है, आप भी इसको फॉलो करें। अब उनको फॉलो ना करें तो मेरी बात मान लें, सवाब मिलेगा मुझे भी इंशाल्लाह। नहीं भी मानेंगे तो मुझे तो सवाब मिलेगा। मैंने एक अच्छा मशवरा दिया और अच्छा नेक मशवरा देना भी सवाब का काम है। हमारा काम नेकी की दावत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप जरूर मतलब ये लिखने की कोई तरकीब करें, या जो इन ऐसी कंपनियों से जिनका ताल्लुक है
दोस्ताने हैं, तरकीबें, तो वो उनको जाकर वो नहीं सुनते होंगे तो कोई बात नहीं, आप इनको जाके मेरा ये पैगाम अर्ज कर दें, शायद इनको समझ में आ जाएगी बात तो फायदे की है। अभी जब अपने घर का बच्चा पिए तब अपने को एहसास हो दूसरे के बच्चों के नुकसान का, है ना। अल्लाह आपके बच्चों को भी सलामत रखे और दूसरे के बच्चों को भी सलामत रखे। तो कोई मतलब बात बात ये होता है कि ऊपर आके पड़ती है तो बंदा बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन इससे पहले हम ना कर लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मैं इस बच्ची के वालिदैन से ताज़ियत करता हूँ। हमारे यहाँ अमूमन इस तरह की चीजें जो घरों में आती हैं, तो इस तरह की चीजें उसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात ये चीजें थैली में आती हैं, शॉपिंग बैग में, जैसे कि ब्लीच होता है कपड़े कुछ कपड़े धोने के लिए वगैरह वगैरह, तो इस तरह मिट्टी का तेल आता है। तो हर चीज़ उस तरह की पैकिंग के साथ आए ये हमारे यहाँ लाजिम नहीं होता, खुले खुले लोग लाते हैं। तो अब इसमें बात होगा ये होता है कि घरों में जो शरबत के बोतल आते हैं या कोल्ड ड्रिंक की जो बोतलें आती हैं, तो लोग अपने घरों में कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में और शरबत की बोतलों में ये मिट्टी का तेल है, ब्लीच है या इस तरह के जो भी दवाइयाँ वगैरह होती हैं वो डाल कर रख देते हैं। तो माशाअल्लाह आपने एक बड़ा खूबसूरत मशवरा दिया कि जो कंपनियां जो बाकायदा जो पैकिंग के साथ होती हैं वो ये एहतिमाम करें, लेकिन चूंकि ये एक बड़ी तादाद खुला बिकता है और खुला घर में आता है, तो अगर घर वाले भी इसकी बोतलें अलग कर दें और बोतलों पर ही स्टिकर लगा हुआ हो कि अव्वल तो ये कोल्ड ड्रिंक की बोतलें ना हो, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक या शरबत की बोतलों में बच्चों का अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, उनको ऐसा लगेगा कि ये कोल्ड ड्रिंक है, ये बोतल है। तो अच्छा, फिर ये उमूमन किचन जो था ना, किचन में जो नीचे की तरफ जो उधर अलमारियां होती है ना, जहां पर वो ड्रेन बना हुआ होता है, ये घर वाले उमूमन उन ड्रेन की जगहों पर ये बोतलें रखते हैं ताकि ये नीचे से धुलने करने की चीजें जो होती है ना ये वहीं हो। तो ये पहुंच तो दूर की बात है, ये तो मतलब जो घुटने पर बच्चा चलता है ना, वो उसका भी हाथ चला जाएगा क्योंकि वो भी खोल लेगा। तो ये हो ऊपर की तरफ कहीं, और वो भी जहां पर ये चीजें रखने की चीज अलग से एक एरिया हो, और उस घर में भी बोतलों के ऊपर ही बड़ा लगा दिया जाए कि मिसाल के तौर पर तेजाब बड़ा लफ्ज लिख दिया जाए, या इस पर वो ब्लीच लिख दिया जाए, मिट्टी का तेल ये लिख दिया जाए। तो इस तरह की चीजें लिखकर और डिफरेंट बोतलें हों, ये बाजारों में मिलने वाली कोल्ड ड्रिंक और इस तरह की चीजें ना हो। इस हवाले से आप क्या फरमाते, अगर घर वाले वालिदैन भी चाहें तो वो एहतियात करें, वरना तो ये फिर अब नमक, अब मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ किचन है, किचन में नमक की डिब्बी पर लिखा हुआ है सॉल्ट, अच्छा वो काली मिर्चियों की जो उस पर लिखा हुआ है पेपर, और कॉफी पर लिखा हुआ कॉफी, शुगर पर लिखा हुआ चीनी के डब्बे पर शुगर, सब लिखा हुआ है, और इसी के डब्बे आजकल घरों में रखे जाते हैं। और ये कल्चर है, और ये हजारों नहीं लाखों घरों का ये कल्चर है। तो जब सारे सब कुछ लिखा हुआ है, तो अब ये बकिया जो ये बिल्कुल खतरनाक चीजें होती है वो भी कोई लिखकर एहतमाम कर लिया जाए, क्या फरमाते हैं आप? लिखा हुआ बाजार से जो मिलता है ना उस पर तो लिखते हैं, लिखा हुआ होता है। अच्छा, अभी छोटा बच्चा ना तेजाब पढ़ सकता है ना शुगर पढ़ सकता है, ये बड़ों को लिखा हुआ फायदा देगा, मगर बड़े इस तरह तेजाब और ये चीजें पीने के इनके वाकयात, तो वो कोई माज़अल्लाह खुदकुशी की तरकीब करे तो वो एक अलग सूरत होती है, वरना नहीं पीते होंगे, भूल के नहीं पीते होंगे, सुना नहीं है कभी, बहुत कम होता होगा ऐसा। और लिखना ये भी एक सुस्ती वाला काम है ना, कौन लिखे, कहाँ से स्टिकर का पीस लाए जिस पर लिखे, फिर ये कि इस पर लिखे कि इसको बच्चों की पहुंच से दूर रखें, ये भी स्टिकर, ये बेचारे कहाँ से लगाएंगे, इतना जहन इतनी समझ बूझ कहाँ से लाएंगे कि यार किसी की जान खतरे में पड़ सकती है, आओ लाओ यार वो कागज लो, गम होते हैं घरों में बाजू का चिपकाने के, तो वो लगा कर कोई मजबूत चिपका दे। तो इतना मतलब करना तो चाहिए कि, और ये भी बिल्कुल यानी कि बेहतरीन मशवरा है कि ये ठंडी बोतलों के और जो मतलब शरबतों के बोतल होते हैं इनमें ये चीजें ना डाली जाए, कि बच्चा यही समझेगा कि ये वही है, और बेचारा खुद भी आजमाइश में पड़ेगा, आपको भी आजमाइश में डालेगा। अल्लाह ना करे, डाल सकता है आजमाइश में, और आजमाइश में पढ़ सकता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।
जी मोहम्मद चिराग चिश्ती हाँ, लवाइकिन के वालिद साहब का नाम हसनैन और दादा जान का नाम जुल्फ़िकार। तो मैं इन दोनों साहिबान से और बच्चे की अम्मी से और दादी नाना नानी और ख़ानदान वाले जो भी हों, मैं सभी से ताज़ियत करता हूँ इस बच्ची के ताल्लुक से। वाकई ये तो ऐसा सदमा है कि मेरा ख्याल है, और ये ट्रेजिडी ऐसी है कि पूरा शहर या गांव जो भी होगा वो हिल गया होगा और सब में ये चर्चा हो रहा होगा। और अभी जमा होकर क्या सुन भी रही है, हाफिजाबाद में सुन भी रही है माशाअल्लाह। जी जी, ये वहीं हाँ, ये सुन रही है साहिबान। तो मैं मतलब ये ताज़ियत भी करता हूँ और अल्लाह पाक से रहमत की दुआ। बच्ची तो खैर अब वो तो इंशाअल्लाह सीधी जन्नत में ही जाएगी और अपने माँ बाप के बख्शने का भी सबब बनेगी। बस वो बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना है, सब्र करना है। अब जो करना होगा वो कर चुके होंगे। ये इसकी वफात को तो 3-4 रोज हो गए गालिबन। अल्लाह पाक रहमत करे। बच्चे को भी, एक दिन का बच्चा भी हो ना, उसको भी इसाले सवाब हो सकता है, ये भी ख्याल रखिएगा। इसाले सवाब भी करना है इसको, तो इसके इंशाअल्लाह दर्जे बुलंद होंगे और आपको भी सवाब तो मिलेगा ही। और इसके इसाले सवाब के इनके वालिद साहब और ख़ानदान वाले, अड़ोस पड़ोस के जो इतने जमा हुए माशाअल्लाह, कोई काफिलों की भी खुशखबरी भेजें कि इंशाअल्लाह हम इतने काफिले इस बच्ची के इसाले सवाब के लिए सफ़र करवाएंगे इंशाअल्लाह। और इसका टाइम पीरियड भी हो, मसलन ये कि अभी से इस जुम्मे से अब जो भी जुम्मा आएगा वो मुहर्रम शरीफ में ही गालिबन होगा, तो या आखिरी तारीख होगी जिलज की। तो इस तरह मतलब है कि इसी जुम्मे से जुम्मा, हफ्ता, इतवार, हमारे 3 दिन काफिले आमतौर पे इस तरह निकलते हैं अपने इलाकों में। मतलब दावत इस्लामी की तरकीब से जो जिम्मेदारान भी इसमें शामिल होंगे तो उनसे मशवरा करके तो सब यानी कि नियत करें या मुहर्रम शरीफ में सारे काफिले मुकम्मल कर लें। बच्चे की उम्र 2 साल बताई गई, तो अगर वाकई 2 साल की है तो डबल 12 माह हुए, 1 माह बढ़ा दें। आला हज़रत की 25वीं शरीफ की निस्बत से 25 माह हो जाएंगे। क्या ही अच्छा हो, बच्ची है जो पूरे शहर में खलबली है हाफिजाबाद में, तो वो 25 काफिले सफर नहीं करवाओगे। एक काफिले में 7 अफराद हों 3 दिन के लिए, अल्लाह की राह में निकले, आपका भी बेड़ा पार होगा इंशाअल्लाह। उनके वालिदैन को तो इतनी खुशी होगी कि बस सारे गम भूल जाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह करीम। देखो, हाथ उठाना इसका मतलब मैं जाऊंगा, और अगर ये वाकई नीयत है तो सच है, वरना झूठ हो जाएगा। वाह, हाथ कम हो गए, वैसे हाथ कम हो गए, वापस बढ़ गए। तुम्हारा सच्ची नीयत हो तो ही हाथ उठाना होता है, नीयत ना हो तो हाथ ना उठाए। कोई गन पॉइंट पर तो आपको बोल नहीं रहा जाओगे कि नहीं, समझे? तो अल्लाह करे तो आप खुशखबरियां मिलेंगी कि भाई हाफिजाबाद में इस फूल जैसी प्यारी प्यारी बच्ची के इसाले सवाब के लिए इतने काफिलों ने सफर किया, तो मुझे भी खुशी हासिल होगी। माशाअल्लाह, कितनी प्यारी बच्ची है माशाअल्लाह। अब ये इसको बार बार अगर माँ बाप देखेंगे तो इनका गम ताजा होता रहेगा। तो इनके माँ बाप को तो ना देखना ही मुनासिब है। आगे चलकर फिर ये क्या वो थोड़ा वो जहन वो हो जाता है, क्योंकि गम जो है ना आहिस्ता आहिस्ता गलत हो जाते हैं। गलत होना माने झूठे हो जाना नहीं, वो चले जाते हैं, कम हो जाते हैं। लेकिन ये ऐसा गम है कि माँ बाप शायद उम्र भर याद रखेंगे, तो फिर भी कमी तो आती है, वरना तो दुनिया के कारोबार रुक जाए। जिस दिन मैयत होती है तो कितना फूट फूट कर रोते हैं, बाद में कह के हमारे हंस भी रहे होते हैं, शादियां करते हैं, दावतें करते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं लोग, तो निज़ाम है दुनिया का बहुत चल रहा होता है। तो अल्लाह पाक रहमत की नजर करे। हमारे गुजराती में कहावत है, दुखनु ओसड़ दहाड़ा, यानी दुख की दवा अय्याम। जो दिन गुजरते हैं, हाँ अय्याम माने यौम की जमा यानी दिन, जो दिन गुजरते हैं दुख जो है, गम है, वो हल्के पड़ते जाते हैं। अल्लाह करीम आपको सब्र अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मोहम्मद चिराग चिश्ती अत्तारी, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका से अर्ज गुजार हूँ, क्या डॉक्टर साहब की रोजी में बरकत अता फरमाए। अमीर अहले सुन्नत ऐसी दुआ कर सकते हैं हम प्लीज।
जवाब इरशाद फरमा दीजिएगा। माशाअल्लाह, डॉक्टर को भी अल्लाह रोजी देता है और मरीज को भी रोजी अल्लाह देता है। तो दुआ करने में कोई हर्ज नहीं है। रोजी में बरकत दे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बंदा बीमार पड़े तो ही रोजी मिलेगी। डॉक्टर लोग कारोबार भी कर रहे होते अपने, ज्यादा कमा लेते तो पैसे रखेगा तो इन्वेस्टमेंट करते होंगे। तो बहरहाल ये कि ये दुआ करने में हर्ज नहीं है, लेकिन किसी की बुराई ना चाहे कि फुला तगड़ा है, बहुत मालदार है, या अल्लाह ये बीमार पड़ जाए तो मेरी दिहाड़ी बन जाएगी, ये सही नहीं है, ये शुमातत है। कि किसी की बुराई में राजी हो, किसी की मुसीबत पर तकलीफ पर राजी होना, ये हदीस में वही है इसकी कि ऐसा ना हो कि उसकी मुसीबत दूर हो जाए और तुम पर वो मुसीबत आ जाए, इस तरह का तो है। मतलब मुतलकन दुआ करने में मेरी रोजी में बरकत दे, हरज नहीं है। मैं मिसाल देता हूँ डराने के लिए, आप लोग समझाने के लिए कि आप लोग ऐसी चीजें खाते हैं, पीते, हरकतें करते हैं तो डॉक्टर भी रोजी में बरकत की दुआ करता होता है, तो सबब आप बन जाते हैं उसकी बरकत का। सबब तो मरीज बनते ही हैं, आप बनते हो या मैं बनता हूँ, तो दवाएं तो मुझे भी जरूरत पड़ती है। एक मैं जनरल बात करता रहता हूँ समझाने के लिए। और दुआ बिल्कुल डॉक्टर साहब को मांगनी चाहिए और औराद वज़ाइफ भी करने चाहिए। वो रोजी में बरकत के कोई इन पर पाबंदी नहीं है। डॉक्टर भी दुआ करें, हकीम साहब भी दुआ करें, और जो सर्जन है ना छुरी तेज करते हैं मरीजों, वो भी दुआ कर सकते हैं, उनको भी मना नहीं है किसी को। कि रोजी का जरिया सिर्फ ये नहीं है, हो सकता है अल्लाह करीम और कोई रोजी का दरवाजा खोल दे जिससे इनको रोजी मिल जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बुजुर्गों का भी आ गया मदनी चैनल, बुजुर्गों का भी आ गया मदनी चैनल। बहुत रंजीदा गमगीन या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी ऐसा करो, आप लोग चले जाओ, मैं नहीं आ सकूंगा। भाई एक बार कह दिया ना, मैं नहीं आ सकूंगा, फिर कभी सही। हाँ, एक आजमाइश है, यूं ही समझ लो कि एक इम्तिहान चल रहा है। अब देखो ये आजमाइश मुझ पर कब तक रहती है। चले, मैं आपसे बाद में तफसीली बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये दवाएं भी स्टोर से ली हैं, मरीज से नहीं चाहिए। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, अल्लाह ताला आपको प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से अपने हिज़्ब व अमान में रखे, आमीन। अक्सर ये देखा गया है कि जब औलाद बीमार होती है या डिसेबल हो, यानी इतनी ज़्यादा कि माजूर हो, तो कोई नहीं कि कहता, माँ बाप भी नहीं कहते ना कि और कि ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए आजमाइश है या इम्तिहान है। इसकी जगह जब माँ बाप बीमार होते हैं और या बूढ़े हो जाते हैं तो उस पर सब लोग, मतलब औलाद भी और उनके जो अहबाब होते दूसरे, सब ये कहते हैं कि ये अल्लाह ताला से आजमाइश है और ये इम्तिहान है आपके लिए। मतलब ये तो ऐसी सोच रखना या ऐसा ख्याल रखना या कहना, मतलब ये कहाँ तक सही है, रहनुमाई फरमाइए। इम्तिहान आजमाइश तो है ही है, हाँ, दोनों तरफ सही है। दोनों का ये कहना जो है, ये मैं भी ये सोच रहा था कि इसमें दोनों है तो सही। आजमाइश तो है, बीमारी भी है,
लेकिन ये अलग बात है कि ये कहना कि अल्लाह पाक ने बीमार कर दिया या मुसीबत में डाल दिया, ये इन अल्फाज में कहना मुनासिब नहीं होता, क्योंकि वो कुरान करीम में ना, इज़ा मरद तो हुआ यशफी, हुआ यशफीन, वइज़ा मरिदतु फहुव यशफीन, वइज़ा मरदतु, मरिदतु रा के नीचे ज़ेर है, मरदती, वइज़ा मरिदतु फहुव यशफीन, वइज़ा मरिदतु फहुव यशफीन, और जब मैं बीमार होता हूँ वो मुझे शिफा देता है। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कौल है कि इन्होंने अदबन ये नहीं कहा कि जब मुझे अल्लाह बीमार करता है तो शिफा भी देता है, बल्कि जब इन्हें अपनी तरफ निस्बत की, और जब मैं बीमार होता हूँ अल्लाह शिफा देता है। जैसे बोलते ना, अल्लाह ने मुझे औलाद की नेमत से महरूम रखा है, ये अल्फाज नहीं है मुनासिब। मेरी औलाद नहीं है, दुआ कर दो औलाद हो जाए। अल्लाह पर मतलब ये, अगरचे मतलब बीमारियां ये जो भी है वो अल्लाह की तरफ से ही होती हैं, लेकिन ये अल्फाज ना कहे जाए, मुनासिब ये है। दोबारा लेके आजमाइशें या जो भी परेशानियां आती हैं वो आती हैं अल्लाह पाक की तरफ से ही आती हैं, और वही दूर भी करता है। औलाद को चाहिए कि अपने माँ बाप की ऐसे हालात में ज्यादा खिदमत करे और इनको अपनी तरफ से किसी तरह का टेंशन न दे, सदमा ना दे। शायद इनके पूछने का मकसद ये हो, जो खाका बनाया तो उसने कहा कि हाँ देखो कब तक इस आजमाइश में रहते हैं। तो आजमाइश तो बहरहाल औलाद में भी हो तो भी माँ बाप कहते हैं कि आजमाइश और इम्तिहान तो है हमारा, लेकिन ये जो अंदाज हो इसमें कि वालिदैन को तकलीफ़ पहुँचे कि हमारी वजह से ये परेशानी के अंदर आया है, तो शायद ये पूछना चाह रहे हूँ कि ये जो अंदाज होता है कि हाँ देखो आजमाइश के अंदर हूँ, देखो कब तक इस आजमाइश में रहता हूँ, इस अंदाज पर आप क्या फरमाएंगे? मुझे उस वक्त मैंने नोट तो किया था इसको, लेकिन मुझे कोई इसमें समझ ही नहीं आई कि उसने कोई बेजारी का इजहार किया है। अच्छा, वो पूछना चाहते हूँ। बेजारी का इजहार तो करना नहीं चाहिए, और आप बोलते मुझे भी समझ नहीं आ रही है जी, जो आपने फरमाया ठीक है, हिकमत क्या इनके पूछने की। शायद वही इनका मकसूद हो कि ये खाका जिस अंदाज में बनाया तो ये कि औलाद जो बेजारी का इजहार करती है कि नहीं मैं तो आ भी नहीं सकता, आप लोग चले जाओ, हाँ बस एक आजमाइश के अंदर हूँ, देखो कब तक इस आजमाइश के अंदर रहता हूँ। तो ये जो जुमला है कि कब तक इस आजमाइश में रहता हूँ, शायद ये बेजारी की तरफ इशारा करता हो। तो इस पर ये पूछना चाह रहे हो कि वालिदैन अगर इस तरह की आजमाइश के अंदर आ जाएं, परेशानी में आ जाएं, तो उनके सामने इस अंदाज में या उनके पीछे से इस अंदाज में बेजारी का इजहार करना कैसा है? अब अगर ये बेजारी है जी, ये तो फर्जी बातें थी सारी खाका। अगर है बेजारी तो मुनासिब नहीं है कि दिल में तो बेजारी होती है, ये तो सही बात है। दिल काबू में नहीं होता, अगर किसी के दिल में है भी तो जबान पे नहीं आना चाहिए, कहना मुनासिब नहीं है दिल से, यानी कि अब मैं कब इससे आजाद होता हूँ कि अब अब्बू बीमार पड़ गए और आ गए बिस्तर पर, अब देखो कब ये जाते हैं दुनिया से तो मेरी आजमाइश का दिन पूरे होंगे। अगर ये मुराद है तो ये तो ज़रा अच्छी बात नहीं है। तुम जब छोटे थे और बीमार हुए थे तो अब्बू ये सोचते थे कि जल्दी जाए, बल्कि बेचारों की नींदें उड़ जाती होंगी कि ये जल्दी से बच जाए। तो आपको भी यही ज़हन बनाना है कि अब्बू जल्दी सेहतयाब हो जाए, अम्मी जल्दी सेहतयाब हो जाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। एक हॉस्पिटल का मैं हुजूर आपको वाकया बयान करूं। मेरा अपना वाकया है कि मैं किसी मरीज के साथ वहां गया था हॉस्पिटल, तो जब निकल रहे थे बाहर तो कुछ नौजवान थे, उन्होंने पहचान लिया और कहा कि हमारे वालिद साहब वार्ड में हैं और आप अगर आकर दुआ वगैरह कर दें। तो मुझे ले गए वार्ड के अंदर और दुआ वगैरह हुई या जो भी था वो होगा। फिर जब मैं बाहर आया तो तसल्ली वगैरह जो मैंने दी, अब वो जो बच्चे जो थे ना हुजूर, नौजवान
2 या 3 मुझे याद पड़ता है, इनके बेटे थे, सब जवान थे। कि अब बहुत दिन हो गए, बस अब दुआ कर दें, बड़े दिन हो गए, अब खर्चा भी बहुत बढ़ गया है। यानी इनके कहने का ये था कि वो कहते हैं मिट्टी ठंडी हो जाए, यानी अब क्या कर सकते हैं, अब बस अब देखें दुआ। अब खुल कर बोल भी नहीं रहे थे और कह भी सब रहे थे। और मैं कहा यार ये, अब मुझे बस अफसोस हुआ अब इनको, भाई क्या, अल्लाह सेहत देने पर भी कादिर है, अल्लाह ताला सेहतियाबी के साथ घर पर आपके वालिद साहब को भेज दे, इस पर भी कादिर है। तो आप अपने रब से अपने वालिद साहब की सेहत, सलामती, इनके साये के दराजी, इसकी दुआ करवाएं। तो किसी को और ये खर्चा असल में इनके पीछे जो गुफ्तगू का जो लॉजिक थी ना हुजूर, वो ये थी कि हम जैसे नहीं तंग आ जाते हैं कि अब कहाँ आएंगे, बार बार आना, काम काज भी है, नौकरी भी होती है, तो ये कईयों की बेचारों की होती है। माँ बाप उमूमन इस तरह की परेशानी का नहीं बोलते, बल्कि वो बहुत कुछ कर देते हैं। यानी कम ही औलाद है जो माँ बाप की वजह से मकरूज है, ज्यादातर माँ बाप ही औलाद की वजह से मकरूज होते हैं। बराबर सही फरमाया। मैं एक बहुत पुराना वाक़या है मेरा, एक 1.5 उम्र का आदमी था, उसके वालिद साहब फौत हो गए, तो मैंने ताज़ियत की उनसे, सब्र की तलकीन, सब्र दे अल्लाह पाक और हिम्मत रखे, और इस तरह कहा होगा, अब क्या जुमले के अल्लाह बेहतर जाने। तो उस आदमी का अंदाज ऐसा था, अब वो अल्फाज तो सारे याद नहीं रहे, अल्फाज इस तरह के अंदाज कि आप बड़ी मुश्किल से बुढ़े बाप ने जान छोड़ी है, तुम ऐसा चाहते हो कि वापस, समझे। तो मैं भी यार हक्का बक्का रही है, मैंने मतलब मैं सोचता रह गया कि यार देखो, अब वो 1.5 उम्र का आदमी, मैं उस वक्त जवान था, दावत इस्लामी के पहले का शायद वाक़या है ये। तो वो आदमी तो अब सवाल ही नहीं कि जिंदा हो, मैं जवान था और वो 1.5 उम्र का था, तो कहाँ जिंदा होगा। बहुत मुश्किल तरीन मामला है कि वो जिंदा हो, अल्लाह गरी के रहमत करे बाप बेटों को। लेकिन जिंदा आदमी यार क्या क्या धंधे करता है यार। लेकिन अगर दिल में था भी कि बाज़ वक़्त बूढ़े जो है ना, ये घर में पड़े रहते हैं, तो बीमार होते हैं, तो फिर बेचारों को बेड सोल हो जाते हैं, बिस्तर पे पड़े पड़े, तो करवटें बदलो इनकी, और नहीं बदलो तो तकलीफ, चीखें मारना, और फिर जो भी बिस्तर पर सब कुछ करना। अब जो कई पैसे वाले लोग होते हैं, इनके पास तो कमरे भी होते हैं इजाफी, फिर वो वार्ड, वो नर्स या जो भी रख लेते हैं, मेल नर्स वगैरह। लेकिन ये हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, खुद करना पड़ता है खिदमत। और इस तरह मतलब ये कि जगह की भी तंगी, तो ये होता है, सही बात है, दोनों तरफ इम्तिहान होता है। उम्र रसीदा माँ बाप या दादा दादी का भी, और इस नौजवान या जो भी है घर के अफराद, सबका इम्तिहान होता है। सबको सब्र करना चाहिए और खिदमत करना। वही कि जब हम बीमार हुए, क्योंकि हमारे माँ बाप बेजार हुए थे, कैसे खिदमत करते थे, हमारा गंद कौन उठाता था, माँ तो उठाती थी। अब ये माँ बेचारी बीमार हो गई, तो चलो आपने नर्स रख दी, एक बात है, कोई खिदमत के लिए रख दी, या कोई भी सूरत ऐसे कर दी, लेकिन बेजार तो ना हो यार, है मतलब ऐसे ही हालात है बस यार। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये आज का घरेलू इलाज लिखा हुआ इसमें नहीं चलेगा, लिखा हुआ था वो पहले भी देखा है मैंने। वो घरेलू हर बार घरेलू मैं पहले से भेज तो देता हूँ कि घरेलू इलाज है या क्या है, समझ आ जाती होगी। तो खैर आपको कुछ भेजा था यार मैंने, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सफेद चीनी के 18 नुकसानात: मोटापा, हाई बीपी, शुगर बढ़ना, दिल की बीमारियों का खतरा, जिगर यानी लीवर को नुकसान पहुंचना, दांतों की खराबी, कुव्वत मुदाफियत यानी इम्यून सिस्टम में कमी, दिमाग कमजोर और हाफिजा खराब, चिड़चिड़ापन, जिल्द यानी स्किन पर गलत असर, झुर्रियां पड़ जाना, दाने हो जाने, बदन में सूजन का बाइस,
कैंसर के खतरात में इजाफा, आंतों को नुकसान, थकन लगना, ताकत में कमी, हड्डियों में कमजोरी, जल्दी बूढ़ा होने के आसार। और नंबर 18, नशे की तरह चीनी की मिठास का आदी हो जाना। जो यहाँ गलतफहमी ना हो, चीनी खाना नशा नहीं है। जिस तरह मेरे चाय का आदी हो जाता है, तो ये चीनी की मिठास अब इसको अच्छी लगेगी, और मिठास चीनी से गुड़ मुंह बिगाड़ेगा। अल्लाह गुड़ महंगा है चीनी के मुकाबले में, लेकिन उसको मजा नहीं आएगा। गुड़ की चाय हम नहीं पीते भाई, चीनी पिलाओ, समझे। तो यूं ये सारा हटा लिया, अभी कुछ है इसमें। तो यूं मतलब ये कि नशे की तरह चीनी की मिठास का आदी हो जाना। तो मशवरा, चीनी की जगह शहद या देसी गुड़ इस्तेमाल कीजिए, और वो भी कम मिकदार में। तो ये तो वे सफेद चीनी के नुकसान। आप सुनिए गुड़ के फायदे। हाजिमा बेहतर बनाता, खून साफ करता, ताकत बढ़ाता, कब्ज में मुफीद, खांसी में आराम देता, सांस की नाली साफ करता, आयरन का कुदरती जरिया, बदन को गर्म रखता, थकन दूर करता, जिगर को फायदा पहुंचाता, जिल्द यानी स्किन निखारता, मौसमी बीमारियों से बचाता, मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता। यानी जब हम कुछ खाते पीते हैं तो उसको तवानाई यानी कुव्वत में तब्दील करने का अमल। गुड़ इस अमल को बेहतर बनाता है। मशवरा, देसी यानी खालिस गुड़ मुफीद है। ब्लीच्ड गुड़ यानी केमिकल से साफ किया गया सफेद गुड़ नुकसानदेह होता है। खालिस गुड़ भूरा, नर्म और कुदरती खुशबू वाला होता है। ये पहचान याद रखिएगा। खालिस नकली भी हो सकता है, टिका देते हो। तो खालिस गुड़ की अलामत है भूरा, नर्म और खुशबूदार होता है, उसमें कुदरती खुशबू होती है। अब इसमें है भाव में फर्क है दोनों के। 21 जून 2025 की रेट लिस्ट जो मालूमात हुई है, तो वो भी अर्ज करता हूं। सफेद चीनी 180 रुपए किलो, जबकि फार्मी सफेद गुड़ 170 से 200 रुपए किलो। और खाना है में देसी गुड़, तो देसी गुड़ 250 से लेकर 300 रुपए किलो। तो यूं मतलब है महंगा, लेकिन फायदे आपने सुने। और जो सस्ता है, सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार, सस्ता रोवे बार बार। तो चीनी रुलाती है बेचारे शुगर के मरीज। हर डिश में चीनी, वो भी डबलिंग, मतलब डबल चीनियां, और उसी मीठी में मीठी डिशें खाते हैं और बेचारे फिर आजमाइश। अल्लाह हमारे मरीजों को शिफा अता फरमाए और परहेजी नसीब फरमाए। ये सफेद चीनी जो है ना, ये समझे कि वाइट पॉइजन, लाइक वाइट पॉइजन। सफेद चीनी जो है ये मीठे जहर की तरह है, एक तरह का मीठा जहर है। तो इससे जितना हो सके बच नहीं सकते। मैं भी समझता हूँ तकरीबन हर चीज में होती है। खाली इसमें फ्रूट चाट बनाते हैं ना, इसमें भी चीनी डालते हैं। अब इनको यार कुछ अल्लाह समझ दे यार, इसमें क्या जरूरत है डालने की। फल जो मीठे मीठे फल है, कुदरती मिठास मौजूद है, फिर चीनी डालते हैं। यानी इसकी अलामत ये कि चीनी जिस फल में डाली जाती है ना, तो वो फल पानी छोड़ता है। चीनी इसमें मिलकर वो जो पानी जो इसके अंदर जमा होता है मीठा मीठा होता है। शायद इसको फिर इसमें वो भी डालते हैं चाट मसाला, तो वो थोड़ा टेस्टी हो जाता है। तो इसलिए मतलब चीनी इसमें भी डालते हैं। शरबत जितने भी बनते हैं जो बाजार में, ये बाजार तो चीनी के होते हैं। हाँ, बल्कि सेक्रिन डालते हैं तो और भी खतरनाक है।
सेक्रिन। यहाँ तक कि गन्ना तो है ना कुदरती मीठा है, गन्ने का खालिश रस पीना चाहिए। ये बर्फ वाला जो ना, बर्फ के अंदर इनकी टेक्निक होती है जो मैंने सुन रखा है, हर एक ना करता हो सकता है ऐसा, तो उसमें ये छुपा के रखते हैं सेक्रिन। तो ये गन्ने का रस जो भी उतरता आता है ये सेक्रिन को लेता आता है। तो अगर गन्ना फीका भी है तो मीठा हो जाएगा, या मीठा है तो मैनेज हो जाएगी इसकी मिठास अच्छी। आम का जूस निकालेंगे, आम मीठा होता है लेकिन मौसम के हिसाब से कमी बेचती होती है, इसमें भी ये चीनी, और तकरीबन जूसेस में चीनी, जितने भी ये जूस के पैकेट आते हैं तकरीबन सब में चीनी होगी। इसी तरह जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनमें भी चीनी, दूध की बोतलें, और ये मतलब हर चीज में तकरीबन चीनी चीनी चीनी। तो खाली चाय में ही चीनी नहीं होती। ये घरेलू मतलब मैंने सिवैयां बनवाई तो गुड़ की, तो मुझे तो अच्छी लगी, इसमें कोई पता ही नहीं चलता था गुड़ की कि चीनी की है। तो कोशिश करेंगे मतलब गुड़ डालें, मतलब थोड़ा हो सकता है कि 19-20 जायका तो नशा है ना चीनी का, चीनी नशे की तरह चीनी हमारे वो जबान उसकी हमारा जो भी है ना वो आदी हो गया, तो इसलिए वो थोड़ा हो सकता है शुरू में यूं लगेगा, लेकिन ये क्या आहिस्ता आहिस्ता तरकीब बन जाएगी। जैसे मुझे चीनी की चाय में मजा नहीं आता, मैं गुड़ की चाय का आदी हो गया हूँ। अब ये नशे की तरह ये चाय के लिए एक तरह से जैसे क्या वो गुड़ की चाय चाहिए मुझे। तो मैं जहां जाता हूँ ना, मैं हर जगह तो जाता भी नहीं हूँ, चंद जगह पर जैसे कि तो वो 2-3 जगह जिसमें मैं जा पाता हूँ, तो वहां चाय मेरी गुड़ की चाय। बाहर मुल्क में भी कहीं जाता हूँ तो मैं हर जगह नहीं जा सकता, तो 2-3 जगह जो बंदी हुई होती है, कभी चले गए उनका खाना खा लिया तो गुड़ की चाय मिलती है मुझे, मेरा काम चल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो गुड़ जो भी हो, देसी गुड़ कहां से लाएंगे, वो गुड़ फिर वहां जो भी मिलता हो, तो हर जगह देसी गुड़ मिलता भी नहीं होगा, लेकिन जो साफ किया हुआ गुड़, अब पता नहीं इसमें मुवाजना कि नुकसान किस में ज्यादा है, चीनी में या गुड़ में, खुदा बेहतर जाने। तो है मतलब देसी गुड़ जहां मिलता है वहां तो कम से कम यूज किया जाए, कोशिश करके देसी गुड़। हुजूर ये मदनी काफिले में शुगर मिल में जाना हुआ तो वहाँ ये मालूम हुआ कि हमें कि ये चीनी वाइट होती है ना, उसकी सोर्स ये है कि कास्टिक फ्लेक्स जो होता है, जिससे उमूमन टेक्सटाइल के अंदर ये यूज होता है, तो कास्टिक फ्लेक्स के जरिए जो है वो चीनी को वाइट किया जाता है। अल्लाह। और गुड़ का जो मेल जो होता है वो काटा जाता है रंग काट से। तो चीनी वाकई जो आपने फरमाया वो बहुत नुकसानदेह है, इसकी कसरत, इसकी किल्लत भी नुकसानदेह मुस्तकिल इस्तेमाल किया जाए तो। और गुड़ भी वही फ़ायदेमंद है जो आपने फरमाया, जो रंग काट के बगैर हो, बगैर केमिकल के हो, तभी इसके फ़वाइद ने। अब मिलावट करने वाले, अब लोग कहते हैं भाई काला गुड़ जो है वो फ़ायदेमंद है, वो देसी है, तो इसमें भी मिलावट शुरू हो गई कि काले रंग के अंदर गुड़ को डाला जा रहा है और गुड़ को काला किया जा रहा है। तो बस पहचान सही की जाए और सही सोर्स से अगर उसको हासिल किया जाए तभी इसके फ़वाइद मिल सकेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपका गमे मदीना और बड़ा है। काला गुड़ आपके मुबारक मुंह से सुना आज मैंने, ये भी आता है, शायद आप डार्क कहना चाहते हो। नहीं, अब मदीने से हाजी आए हैं, हाँ जुम्मे को आए हैं सुबह, गमे मदीना हमें भी अल्लाह करे नसीब हो। बोलना कुछ जाए बनता निकले कुछ मुझसे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी हमने जो सफ़ेद चीनी के 18 नुकसानात और गुड़ के फ़वाइद, ये पोस्ट देखी, ये अमीर अल-सुन्नत बरकातुहु आलिया के ऑफिशियल फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट और व्हाट्सएप चैनल पर भी वहाँ अपलोड कर दी गई है, वहाँ से भी आप हासिल कर सकते हैं। SMS के ज़रिए एक सवाल मौसूल हुआ है कि अल्लाह पाक को कायनात का बेताज बादशाह कहना कैसा? अगर बेदहानी या सबकत लिसानी से ज़बान से निकल गया हो तो क्या हुक्म होगा? बादशाह तो हरज नहीं है, वो तो अरबी में है ना, मलिक, मलिकुल मुल्क, मालिकुल मुल्क, मलिकुल कुद्दूस, मलिक बने बादशाह, बेताज बादशाह। वैसे आमतौर पर मतलब ये बादशाह
को नहीं बोलते। अल्लाह के का कोई हर दिल अजीज आदमी हो ना, सब उसको मानते हो, एहतराम करते, उसको बोलते यार ये अल्लाह के का बेताज बादशाह। मैं भी कभी कभी बोलता हूँ इमाम मस्जिद ये अल्लाह के का बेताज बादशाह होता है, मुहावरतन बेताज कहते हैं, वरना जो दुनिया में बादशाह होते हैं उनकी ताज और तख्ती है, निस्बतें होती हैं। तो अल्लाह के लिए लफ्ज तौहीन तो नहीं लगती है। अब ये अल्लाह का पाक के शान है या नहीं, वल्लाहु अअलम। हाँ, वो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। सीखने सुन्नते काफिले में चलो, लूटने रहीमतें काफिले में चलो, होंगे हल मुश्किलें काफिले में चलो, पाओगे बरकतें काफिले में चलो। सुभान अल्लाह। सिंध से 20 जून एक माह के काफिलों का सफर था। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त रावलपिंडी स्टेशन पर आशिकान रसूल मौजूद हैं। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से एक माह के इस्लामी भाइयों ने रायपुरा में सफर इख्तियार किया। अभी भी मजीद इस्लामी में सफर करते रहेंगे इंशाअल्लाह उल करीम, ये तादाद और बढ़ेगी। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, आपकी खिदमत में एक सवाल भी अर्ज करना है कि माशाल्लाह इतनी बड़ी तादाद में कई भाइयों ने रायपुरा में सफर इख्तियार किया है, एक माह का सफर है, दिल लगाकर किस तरह सफर किया जा सके, इस हवाले से हम सब की रहनुमाई फरमाए। आज मदनी मुज़ाकरे में अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद G11 में शरकाए काफिला इज्तिमाई तौर पर आपकी खिदमत में मदनी मुज़ाकरे में हाजिर भी हैं। आप दुआ भी फरमा दें और मजीद पहली मुहर्रम को इंशाअल्लाह 12 दिन और एक माह के मजीद सिंध से काफिले सफर करेंगे, उन्हें भी दुआओं से नवाज दें। हमारा 12 माह काफिलों का सिलसिला चलता रहे। माशाअल्लाह, बहुत मुबारक सफर होता है ये, और बड़े खुशनसीब इस्लामी भाई इसमें सफर से मुशर्रफ होते हैं, और जरूर हर एक को सफर करना चाहिए। हर महीने 3 दिन सफर हो, 12 दिन का भी सफर हो, तो 12 माह का भी यकमुश्त सफर हो, खुशनसीब होते हैं वो, सारी जिंदगी राह खुदा में वक्फ हो जाते हैं, जिसको हमारे यहाँ वक्फ मदीना कहा जाता है। तो सफर हर महीने 3 दिन तो सबको कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह आपकी बैटरी भी चार्ज होती रहेगी। इंशाअल्लाह खौफ खुदा बढ़ेगा, इश्क रसूल बढ़ेगा, और बातिनी इस्लाह होगी, बुग़्ज़, हसद, कीना, जो ये बहुत सारी बातें शुरू हुई थी, ये बहुत सारी बातों के ताल्लुक से आपको सीखने का मिलता रहेगा काफिले में। और जो काफिले में सफ़र करते हैं और हर महीने 3 दिन सफ़र करते रहें, वक्तन फ़वक्तन सफ़र करते रहें, अल्लाह पाक इनको बार बार मदीने का सफ़र भी नसीब फरमाए और हज का सफ़र भी नसीब करे, और बिलाखिर जन्नत फिरदौस में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बना ले। इनके सदक़े में मेरे हक़ में भी दुआएं कबूल फरमा ले, आमीन। बिजाई ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये गुड़ आ गया, देसी गुड़, देसी गुड़ नजर आ रहा है ना, है ना, यानी ये डार्क है। सल वो मेरी आज एक बड़ी बहन कोलंबो में, खदीजा, उनकी बरसी है 24 ज़िलहज शरीफ, और 26 ज़िलहज शरीफ आ रही है। मेरी बड़ी बहन फातिमा जो यही थी, जिसको हमारे यहाँ माहौल में फुई माँ बोलते थे, लेकिन वो आमना सामना नहीं होता था भाइयों का, ये इस्लामी बहनों में खासकर फुई माँ बोलते थे इसको। तो उनकी बरसी 26 ज़िलहज को है। मैं अपनी बहनों के नाम इनके इंतकाल के बाद लेना शुरू किया। हमारे यहाँ ये नाम का भी पर्दा है, बिला ज़रूरत नाम का इज़हार अपनी बेटियों के नाम जवानों के सामने बोल रहे होते हैं, मेरी बेटी के मंगनी ने, मेरी बेटी की शादी ने। मुझे सही बात है कि औरतों को शादी मुबारक कहने में शर्म आती है। अब तक खुशियाँ आते हैं, पैगाम खुशियाँ मुबारक हों, अल्लाह गराबात करे, इस तरह के अल्फाज में बोल के गुजर जाता हूँ हत्ता इम्कान। लेकिन शर्म इनको मगर नहीं आती, ये अपने हिसाब से जो बोलना होता है, लिखना होता है, वो लिखना बोलना होता है, मतलब माहौल ऐसा। हालांकि बाहर शरीयत में इतनी प्यारी बात लिखी है हया के ताल्लुक से कि अगर लड़की से जैसे इजाजत मांगी निकाह की और वो शर्मा कर जमीन की तरफ देख ले नीचे, तो ये इजाजत मानी जाएगी।
कितनी बड़ी बात है। ये कभी होता होगा किसी दौर में, तो इन्होंने लिखा, अब तो खुदा बेहतर जाने क्या क्या होता होगा। तो बहरहाल हया जितनी हो अच्छी है, और ये हया औरत का जेवर है। जितना हो सके अपने घर की खवातीन के नाम, बीवियों के नाम ले लेकर, नाजायज नहीं कहता हाँ इनको नाम लेने को, लेकिन यूं लगता है कि जरूरत, जहाँ सख्त जरूरत ना हो, नाम अवाम में लेने की जरूरत क्या है। कोई आपको पूछता है आपकी बीवी का नाम क्या, आपके वाइफ का नाम क्या, तो आपकी जवान बेटी जो है उसका नाम क्या, किसी ने पूछा है कभी? पूछे तो फिर आप उसको पूछ लेना, ये क्यों पूछता है, तेरी नीयत क्या है पूछने में। अंडरस्टूड है, तो लोग नहीं पूछते इस तरह आमतौर पे, औरतें पूछती हूँ अलग बात है। तो इसलिए वो मैंने कहा, मैं इंतकाल के, हालांकि मेरे से बड़ी है, अभी चंद साल हुए वफात हुए, मैं तो हुई बूढ़ा, तो मेरी इस बड़ी बहन बुढ़िया थी, मुझसे बड़ी थी, नाम नहीं लेता था मैं आमतौर पर। तो खैर, तो ये फातिमा बाई हमारी जो है बड़ी बहन, इनका अभी 26 जुल्हज शरीफ को इनका जो में विसाल, तो इन दोनों के इसाल स्वाब के लिए ये हमारे इस्लामी, दो इस्लामी भाइयों ने इत्तेफाक से अचानक, मतलब गुड़ के और फजाइल सुने ना, तो 26 बोतलें भेज दी बहनों के इसाल स्वाब की नीयत से, मिलकर मेरी मुझे मालिक कर दिया, लेकिन इनके बोला हमारी नीयत है कि इनका इसाल स्वाब, तो चलो भाई इनका इसाल स्वाब गुड़, ये नया इजाफा है ना गुड़ का इसाल स्वाब। तो अब ये कि सोशल मीडिया का दौर है, इनको हंसी आए, अल्लाह बरकत दे सबको नेकियों में, और नेकी पर हंसने वालों को अल्लाह तौबा की तौफीक दे। नेकी नहीं है क्या गुड़ का इसाल स्वाब। तो बहरहाल, तो ये इंशाअल्लाह मैं आज है ना खुसूसी मदनी मुज़ाकरा, उसमें बात करेंगे उन इस्लामी भाइयों से जो उसमें तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि वो लिमिटेड वैसे ही है। तो देखिए क्या होता है, कोई चिट्ठी वगैरह का भी तरकीब बन नहीं पाई, इस पर लगाना ईसाले सवाब की चिट्ठी, तो ये अच्छा रहता है कि इससे तरगीब, तो चलो मदनी चैनल पर तरगीब हो गई कि ईसाले सवाब इसका भी हो सकता है, पढ़कर ईसाले सवाब हो सकता है, खाना खिलाकर ईसाले सवाब होता है, कपड़े पहनाकर, सूट पीस देकर, या जो भी फल फ्रूट जो भी हम बांटे ईसाले सवाब के लिए, जो भी जायज हलाल शे, तो ईसाले सवाब हो सकता है इसका। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मैं वैसे सादात किराम से शुरू करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब यह कि आलिम जो सैयद से अफजल होता है, गैर आलिम सैयद हो, तो उससे इनसे शुरू कर दूं, मुफ्ती साहब से। सही साहब है, अच्छा, तो डब्बा एक ही आया मेरे पास, चलो तो है तो सही सबको भी। माशाअल्लाह, आजा आजा, सही सब तशरीफ लाए। दो देने सही सबको, अल्लाह तो दो देते थे ना, है आपका यार हमदर्दी, तो तंग भी करते हैं, हमदर्दी भी करते हैं। अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। स्टूडियो में भी सही के नाजरीन और फैजान मदीना कराची के हाजरीन, हर हफ्ते एक रिसाला पढ़ने और सुनने के लिए अता किया जाता है। आइए इस रिसाले के बारे में सुनते हैं दुआए अत्तार। गाफिलों का काम, दुनियादारों की दुनिया यानी मालो मनसब को देखना, और उनकी दुनिया यानी दौलत व इख्तिदार वगैरह की तमन्ना करना गाफिलों का काम है। दुनिया के मालो असबाब वगैरह में अपने से नीचे यानी अपने से ज्यादा गरीब या परेशान हाल को देखे। दीन यानी नेकियों वगैरह में अपने से ऊपर यानी ज्यादा नेक बंदों को देखे। या अल्लाह पाक, जो कोई 17 सफ़हात का रिसाला तफसीर नूरुल इरफान से 105 मदनी फूल किस्त नंबर 5 पढ़ या सुन ले, उससे कुरान करीम की तिलावत का शौक अता फरमा, और उसको माँ बाप और खानदान समेत बेहिसाब बख्श दे। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाह खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।
تفسیر نور العرفان سے 105 مدنی پھول قسط 5. اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے بروں سے بیزاری سنت انبیاء ہے، رات کو آرام کرنا بھی عبادت، جبکہ اسلام میں کسی کو زندہ جلانا منع ہے، زکوٰۃ نہ دینے سے بارش رکتی ہے، اور بہت کچھ. اردو زبان میں 17 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 22 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، ہندی، سندھی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے، یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113928 پر رابطہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ باب کی عظمت و شان، جسے دنیا بھر میں پڑھنے اور سننے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے، آئیے دیکھتے ہیں. ہفتہ وار رسالہ پڑھنے اور سننے والوں کی کارکردگی. رسالہ باب کی عظمت و شان. دنیا بھر میں اسلامی بھائی 12,63,165، 1,263,165. دنیا بھر میں اسلامی بہنیں 7,11,215، 711,215. مجموعی کارکردگی 19,74,380، 1,974,380. 14 جون 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، یکے بعد دیگرے یعنی ایک ایک کر کے نبی کی 2 صاحبزادیوں سے نکاح کرنا، یہ وہ عظیم مرتبہ ہے جو دنیا میں صرف ایک خوش نصیب ہستی کو نصیب ہوا. بتائیے وہ کون ہے؟ جواب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. سوال نمبر 2، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اس وقت آپ کون سا اہم کام کر رہے تھے؟ جواب، قرآن پاک کی تلاوت. سوال نمبر 3، حضرت امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو کس عمل کے سبب علمی مقام و مرتبہ ملا؟ جواب، والدہ کی خدمت کے سبب. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: محمد زاہد سعید پھلروان، محمد مبین اتاری جامعۃ المدینہ حیدر ٹاؤن اوکاڑا، محمد ناطق اتاری جامعۃ المدینہ دیپال پور، احسان رضا ساکرو سندھ، محمد فاروق اتاری بن حاجی محمد اشرف خیبر پختونخوا، بنت معین الدین اتاریہ اورنگی ٹاؤن کراچی، ابو لقمان ابو بکر